கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான நாளுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். इस अच्छे दिन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। இது ஒரு மனமகிழ்ச்சியின் நாள். ये एक खुशी का दिन है। கர்த்தர் நம்மளை கடந்த 2 வாரம் முழுதும் பாதுகாத்தார். परमेश्वर मेरे पिछले 2 हफ्ते से संभाला। இந்த 3வது வாரத்தில் நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறார். उसने हमें इस तीसरे हफ्ते में लेकर आया। அவர் செய்த நன்மைகளுக்காக, उसने किया हुआ भलाई के लिए, அவர் நம்மேல் பாராட்டின கிருபைகளை எண்ணி उसने किया हुआ दया को याद நாம் रखते தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி आप परमेश्वर को धन्यवाद நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை உபத்திரவங்கள், हमारे जीवन में कितने मुसीबत, எத்தனை பாடுகள் வந்தாலும், कितने तकलीफ भी எல்லா பாடுகள் மத்தியிலும் उस सारे तकलीफ के நாம் தேவனுடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது, परमेश्वर का चेहरा को देखें, அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது, जब उसकी ओर हम देखें, அவருடைய முகத்தை, நம்முடைய முகத்தை வெட்கப்படுத்தாதபடிக்கு, वो हमारा चेहरा को लज्जित ना होते நம்முடைய முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறபடியால் हमारा चेहरा को प्रकाशित करता இந்த ஆராதனை துவக்கமாக इस आराधना की शुरुआत ஸ்தோத்திரம், நம்ம ஒரு சிறிய பாடலை படித்து एक गीत गाकर நாம் தேவ நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். हम प्रभु की ओर देखें। ஜீசஸ் நல்லவர். ஆமென். எந்தன் பாடுகள் வேதனை மறைந்துவிடும், எந்தன் கலக்கங்கள் மாறிவிடும், எந்தன் பாடுகள் வேதனை மறைந்துவிடும், எந்தன் துயரங்கள் கலக்கங்கள் மாறிவிடும், உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. யோர்தானின் வெள்ளங்கள் விலகிவிடும், எரிகோவின் மதில்களும் இடிந்து விழும், யோர்தானின் வெள்ளங்கள் விலகிவிடும், எரிகோவின் மதில்களும் இடிந்து விழும், உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. எங்கள் தேசத்தின் கட்டுகள் முறிந்துவிடும், எங்கள் சபைகளில் எழுப்புதல் பரவிவிடும், எங்கள் தேசத்தின் கட்டுகள் முறிந்துவிடும், எங்கள் சபைகளில் எழுப்புதல் பரவிவிடும், உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. நாம் செபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். हमसे प्रेम करने वाले पिता,
आपको हम धन्यवाद देते हैं। இந்த ஓய்வு நாளை நீ காணிச்சத கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. इस विश्राम दिन को आपने हमें देखने को मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। எங்களுக்கு கொடுத்ததான ஜீவனுக்காக சுகத்திற்காக பலத்திற்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே. आपने हमें दिया हुआ जीवन के लिए, सुख बल के लिए हमको धन्यवाद देते हैं। இந்த நாளை காணும்படியாக எத்தனை பேர் பிரயாசப்பட்டார்கள் அப்பா. ये दिन देखने के लिए कितने जन ने कोशिश की, ஆனால் அவர்களால காண முடியாதபடிக்கு लेकिन वे नहीं देख पाए। இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போய் விட்டார்கள். इस दुनिया को छोड़कर चले गए। எங்களுக்கு இரக்கமாக हमें आपने दया कर दी, ஆண்டவரே தயவாக अनुग्रह से எங்களுக்கு இந்த நாளை நீ காணிச்சத கிருபைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. आपने ये दिन हमें देखने को दिया, इसके लिए धन्यवाद देते இந்த हैं। நாள்ல நாங்கள் உம்மை உயர்த்தி நாங்கள் பாட போகிறோம். आज के दिन में आपके नाम को ऊंचा करके गाने जा உம்முடைய रहे हैं। நாமம் எல்லா நாமத்திற்கு மேலான நாமத்தை உடையதம்பா. आपका नाम सभी नामों में श्रेष्ठ नाम है। அற்புதங்களை செய்கிற நாமத்துக்கு நோக்கி வந்திருக்கிற ஐயா, अद्भुत करने वाले नाम के पास हम आए हैं। இந்த ஆராதனைய इस आराधना को ஆண்டவரே நீங்க தாம் எங்களுக்கு நடத்தி தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். केवल आप हमें चला कर दीजिए। பரலோகத்தின் ஆராதனையாக மாற்றி தாங்க. स्वर्ग की आराधना बना दीजिए। தேவ தூதர்கள் உற்று நோக்கிற ஆராதனையாக மாற்றி தாங்க. स्वर्गदूत देखने के अनुसार वैसा परमेश्वर आराधना எல்லா कीजिए। பகுதிகளிலும் सारे भागों में உம்முடைய பாதுகாப்பு, आपकी रक्षा, உம்முடைய வல்லமை, आपकी सामर्थ, உம்முடைய பிரசன்னம் आपकी प्रसन्नता அப்பா இருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். रहने के लिए हम प्रार्थना करते இதுல கலந்து கொண்ட பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். हैं। भाग लिए भी आपके बच्चों के लिए ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை பலப்படுத்துவீராக, एक को आप बलवंत कीजिए, ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிப்பீராக, एक को आप आशीष அவங்க कीजिए। மன விருப்ப வாஞ்சை நிறைவாக்கி கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். उनकी मन की इच्छा चाहत को पूरी करके உம்முடைய दीजिए। பிள்ளைகளை आपके बच्चों தீங்கு துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு, दुख उन्हें न छूते हो, தீமைகள் அவர்களை சூழ்ந்தாதபடிக்கு बुराई उनकी ओर न आते தேவ பாதுகாப்பு இருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். परमेश्वर का रक्षक रहने के लिए உம்முடைய प्रार्थना करते கரத்தால பிள்ளைகளை மூடுவீராக. हैं। आपके हाथों से अपने बच्चों को ढांप என் लीजिए। கரத்தினால் உன்னால் மூடுவென்று சொல்லி இருக்கிறதையா, मैं अपने हाथों से उन्हें ढांपूंगा करके உம்முடைய कहा। பிள்ளைகளை கரத்தால மூடுவீராக. आप अपने बच्चों को आप छिपा உம்முடைய लीजिए। நிழலுக்குள்ளாக மறைத்து நீர் பிள்ளைகளை வெளிப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आपके छाव में छिपाकर उन्हें प्रकट कीजिए। ஆண்டவர் எல்லா நல்லடக்க கிருபையில தாங்க. सब कुछ कार्य अच्छे से उन्हें मदद எல்லா பகுதியிலும் வல்லமை விளங்கட்டையா. कीजिए। कार्य में आपकी सामर्थ बढ़े। பாடல் பகுதி ஆசீர்வதித்தாங்க. इनके भागों को आशीष कीजिए। ஆராதனை வேளையில நீர் எங்களோடு விடும்படியாக செபிக்கிறோம். आराधना के समय में आप परमेश्वर हमारे संग रहिए। மெடிடேஷன் பகுதி ஆசீர்வதித்து தாங்க. मेडिटेशन के भागों को आशीष कीजिए। வசனம் எங்களோடு பேசும்படியாக செபிக்கிறேன். वचन बांटते समय आप हमारे साथ बातें எங்க कीजिए। தேசத்துக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। தேசத்தை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. हमारे देश को आशीष कीजिए। ரட்சித்து தாரும். उद्धार करके தேவனா மகிமைப்படட்டும். परमेश्वर के नाम महिमा हो। பெரிய காரியங்களை செய்யும். बड़े काम कीजिए। இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்களின் ஜீவனுள்ள பரமபிதாவே, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता, ஆமென். आमेन। கர்த்தருடைய பாடலை படித்து हम एक गीत गाकर தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். परमेश्वर के नाम की महिमा நீ करें। எங்களோடு கூட आप हमारे साथ நீங்க இணைந்து காணப்படும்படியாக, मिलकर हमारे साथ जुड़ने के நீ लिए இணைந்து இந்த பாடலை படிக்கும்படியாக आप हमारे साथ मिलकर एक गीत உங்களை அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். हम आपसे प्रेम से विनती करते கர்த்தர் தாமே உங்களை பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிப்பாராக. हैं। परमेश्वर आपको बलवंत करके आपको आशीष முதலாவது ஒரு தமிழ் பாடலை படிக்கலாம். करे। पहला एक तमिल गीत गाएंगे, அதற்கு பின்பு நம்ம இந்தி பாடலை படித்து தேவநாமத்தை உயர்த்துவோம். फिर हम लोग हिंदी गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। புதிய நாளுகள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபைகள் என்னை நிரப்பும், புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. அந்த பாடலை படிக்கலாம். அருமையான பாடல். கர்த்தர் உங்களோடு இடைப்படுவாராக. புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும், புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போ, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா, புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போ, புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போ. ஆரம்பமற்ற
ஆரம்பம் அற்பமானாலும் முடிவு சம்பூர்ணமா. எல்லா குறைவுகள் நிறைவாகட்டும், வறட்சி செழிப்பாகட்டும், ஏன் வளர்ச்சி செழிப்பாகட்டும். புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போம். எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாமா? என் நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போம். வெட்கத்துக்கு பதிலாக நன்மை தாரும் தேவா, கண்ணீருக்கு பதிலாக ஆனந்த களிப்பை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போம். புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போம். சவால்கள் சந்தித்திட, உலகத்தில் ஜெயமெடுக்க, குடும்ப உறவுகள் சீர்பொருந்த, சமாதானம் நான் பெற்றிட, மனதில் சமாதானம் நான் பெற்றிட, புது கிருபை தாரும் தேவா. எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கலாமா? பலனை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போம். புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போம். புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போம். புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்போம். हालेलुया। हालेलुया। हम एक हिंदी गीत गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। हम सब मिलके एक गीत को गाएंगे ताली बजाकर। हम खुशी के साथ एक गीत गाएं। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान,
जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस को लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस को लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर बहुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जल्द करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्द करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे बेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज हम भजन संगीता को हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। सब लोग अपने हाथों में बाइबल लीजिए और बाइबल का पार्ट्स को खोलिए। भजन संगीता 138, भजन संगीता 138, सैम्स 138 हम इसमें आज ध्यान करने जा रहे हैं। इस वचन में 8 वचन है, बहुत छोटा वचन है, पर फिर भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। कभी भी हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, वचन ध्यान करते हैं, भजन संगीता पढ़ते हैं या फिर बाइबल का कोई भी अध्याय को पार्ट्स को हम पढ़ते समय हम घाय घाय में पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक एक वचन को ध्यान रख के समय निकाल कर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इतना इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा, उसमें से बहुत सारा महत्व कार्य को आप सीख सकेंगे, आप पहचान पाएंगे, आपको जीवन में वो बड़ा है कि मुख्य भाग हो जाएगा। तो आज हमको यहाँ पे 138 का भजन संगीता हम पढ़ रहे हैं। उसमें दाऊद का भजन है
दाऊद का भजन, हम मोस्टली भजन संगीता में हर भजन में दाऊद का भजन ही कहा गया है। और भजन वो ऐसा, इस भजन यानी कि वो कहाँ गाता है, किधर गाता है, कैसा रहता है, कैसा गाता है, वैसा तो हम देखे जाए तो ज़्यादा करके वो भजन संगीता भजन गाते समय वो जब भी जंगल में रहता है, कभी कभी वो अपने चरवाहा अपनी जो भेड़ को बकरी को चराते समय, या फिर कभी वो दुख से रहते समय, या फिर वो गुफा के अंदर, ऐसे जिधर जिधर उसको जगह मिलता है वहाँ पे बैठ के क्या करता है, वो भजन गाता है। तो यहाँ पे एक हम भजन संगीता में पढ़ रहे हैं कि पहला वचन कहा गया है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। यहाँ पे पहला भाग में हम देखेंगे कि जो दाऊद कहता है कि मैं पूरे मन से क्या करूँगा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा और देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। इसका मतलब क्या है? देवताओं के मतलब कहेंगे तो हमें तुरंत दूसरा कुछ ही याद आता है, लेकिन उनके बारे में एक और उसका एग्जाम्पल है, उसका एक और अर्थ है, मतलब यानी राजा है, राज करने वाला मंत्री हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, या हमसे कोई भी बड़े लोग जो भी है उनको ऐसा कहा गया है। तो वो कहता है, दाऊद कहता है कि मैं उनके सामने भी मैं पूरे मन से मैं तेरा क्या करूँगा, धन्यवाद करूँगा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं दाऊद किस तरह से और कहाँ कहाँ कैसे उसने भजन गाया और क्यों उसने धन्यवाद किया करके हम लोग देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि दाऊद कैसा धन्यवाद करता है। धन्यवाद तो सभी करते हैं, तो यहाँ पे हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे तो दाऊद कैसा धन्यवाद करता है। दाऊद पूरे मन से क्या करता है, धन्यवाद करता है। आज हम जब भवन में रहते समय पास्टर जी कहते हैं आप सब लोग धन्यवाद कीजिए करके बोलते समय हम कैसा धन्यवाद करते हैं? मन में कुछ और रहता है, ध्यान हमारा यहाँ वहाँ भटकता है, कोई समझना नहीं चाहिए, कोई देखना नहीं चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए करके हम लोग फिर भी मुँह से क्या बोलते रहते हैं, धन्यवाद बोलते रहते हैं। लेकिन पूरे मन से तो हम क्या नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते। सब नहीं, कुछ लोग ऐसा है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं पूरे मन से मैं परमेश्वर को क्या करता हूँ, धन्यवाद करूँगा। क्यों धन्यवाद करता है? उसने कितने मुसीबत से उसको बचाया, कितने संकट में उसको बचाया, कितने कष्ट में उसको बचाया, वो सब याद करके वो क्या करता है, परमेश्वर को धन्यवाद करता है। आज परमेश्वर हमारे हाथ में 24 घंटा दिया है। उस 24 घंटे में कितने बार हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? ज़रा सोच के देखते हैं क्या? नहीं, हम मोस्टली अपने फ़ोन में या बिज़ी रहते हैं, या व्हाट्सएप में बिज़ी रहते हैं, फेसबुक में बिज़ी रहते हैं, या टीवी में बिज़ी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करना क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन नहीं प्यारों, जब भी हम चाय पीते समय प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कितने लोग को दूध नहीं मिलता है, कितने लोग के घर में शक्कर नहीं है, कितने लोग के घर पे चाय पत्ती भी नहीं है आज का सिचुएशन में देखा जाए तो। लेकिन परमेश्वर ने आप सबको वो दिया है। वो कप पीते समय परमेश्वर क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और उतने दोपहर के समय, खाते समय, हम रात को खाते समय बीच बीच में कितने बार हम लोग घर पे, वैसे बच्चे लोग सब घर पे कितने बार बीच बीच में हम लोग वैसा खा लेते हैं, तो कभी धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर को एक कैसा आया, प्रभु कैसा दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, हमारे घर का परिस्थिति कैसा चल रहा है, ये सब याद करके धन्यवाद देता है क्या? वो ज़रा सोचना चाहिए। मैं भी ऐसे ही है, सुबह उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जब भी कुछ पीती हूँ तो भी धन्यवाद देती हूँ, खाते समय भी धन्यवाद। क्यों? परमेश्वर ने हम पर दया करके परमेश्वर ने क्या किया है, दिया है, इसीलिए कहता है। उतना ही नहीं, और हमें नया जीवन दिया है। रात को सो के उठने के बाद हम अगर आँख खुली तो भरोसा कि हम लोग जिंदा है करके, नहीं तो पता नहीं। परमेश्वर उसके लिए वो जीवन नया दिया है, उसके कारण के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे धन्यवाद नहीं, पूरे मन से धन्यवाद देना चाहिए। और दाऊद के कहाँ पर रख के उसने धन्यवाद किया? मैं आपको पहले ही बताया, दाऊद कहीं जा नहीं सकता था, किधर जाने को उसको समय भी नहीं मिलता था। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि मैं दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं तो मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। वो कहता है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर के पास आकर भी मैं तेरा क्या करूँगा, धन्यवाद करूँगा। तो वो पवित्र मंदिर किसको उसने स्पष्ट किया है?
हम कौन हैं? हम ही एक पवित्र परमेश्वर का एक मंदिर है। हम परमेश्वर का मंदिर है। वो खुद को अपना मंदिर समझकर, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। और दाऊद कहता है कि मैं उसमें से मैं परमेश्वर को क्या करूँगा? धन्यवाद करूँगा। और उतना ही नहीं, अब आत्मिक तरफ से देखेंगे तो हम एक मंदिर है, और संसारी की तरफ से देखेंगे तो हमारे लिए आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए क्या है? एक भवन दिया गया है। वहाँ पे भी जाकर हम लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं। वचन में हम देखा जाए तो पवित्र मंदिर में हमें क्या क्या मिलता है, क्या आशीष मिलता है, ये हम देखा जाए तो उसको बहुत ही समय जाएगा। लेकिन कुछ बातें आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर के भवन में हमें क्या मिलता है? आनंद की भरपूरी मिलता है। आनंद हो जाता है। हमारे मन में जितना भी क्लेश है, दुख है, परेशान है, वो हम एक कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन परमेश्वर को पूरे मन से आनंद धन्यवाद करने की वजह से दाऊद का कहता है कि वो पवित्र मंदिर में क्या है? उसके आनंद की भरपूरी है। और उतना ही उसके मंदिर में चिकनी चुपनी जो भोजन, चिकने भोजन, एकदम स्वादिष्ट भोजन, जो अच्छा ताकत देने वाले भोजन उसके किधर है? मंदिर में है। क्या भोजन? जो हम लोग हॉर्लिक्स विलिक्स पीते हैं वो नहीं भोजन। हमारा भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का भवन में उसका वचन के द्वारा हम क्या बनते हैं? मजबूत बनते हैं, ताकतवर बनते हैं। वही कहा गया है। उतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मैं भी एक कौन हूँ? परमेश्वर का एक मंदिर हूँ। प्रभु भी कहा कि तुम कौन हो? एक परमेश्वर का मंदिर हो। और परमेश्वर हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। जब भी आप धन्यवाद करने शुरू करते हैं, जब भी आप स्तुति करने शुरू करते हैं, तो तुरंत परमेश्वर क्या है? आपके अंदर है, आपके संग रहता है। वो आपके अंदर क्या करता है? वास रहता है। उसके कारण आपके साथ वो क्या हो जाता है? मगन हो जाता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए कितना धन्यवाद कहती है, कितना स्तुति करती है करके परमेश्वर क्या होता है? आनंद होता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं तेरे पवित्र, किधर? पवित्र भवन में, पवित्र मंदिर में आकर मैं क्या करूँगा? तेरा धन्यवाद करूँगा। और उतना ही नहीं, दाऊद क्यों धन्यवाद कहना चाहता है? यही बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा। और वो क्यों धन्यवाद कहता है? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ नाम, सबसे बड़ा नाम अपना परमेश्वर यीशु मसीह का नाम है। उसके नाम के अलावा और कोई बड़ा नाम नहीं है। ये हम सब जानते हैं, परमेश्वर खुद जानते हैं। लेकिन यहाँ पे दाऊद एक बात कहता है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से क्या किया? महत्व दिया है। क्या वचन क्या है? मैं तुझे न छोड़ूंगा, मैं तुझे न त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, तू अकेला नहीं, मैं तुझे अपने हथेली पे रचाया हूँ। ये सब क्या है? परमेश्वर का वचन है। इसमें परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने अपना नाम से ज़्यादा उसने हमसे जो वादा किया है, जो वचन दिया है, उसको महत्व किया है, उसको इम्पोर्टेंस दिया है। इसके लिए दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा। ज़रा सोच के देखिए ना, परमेश्वर कितना महान है। अपने लिए उतर आकर, अपने लिए इस दुनिया में आकर, एक छोटा बालक रूप में जन्म लेकर हमारे लिए इतना दुख सहकर, जितना वो सिंहासन पे विराज करने वाला परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आकर हमारे लिए मर कर, हमारे लिए फिर जी उठकर, और फिर हमें क्या लेने के लिए वो आने वाला है। इतना बड़ा परमेश्वर रह के हुए भी वो कहता है कि उसने अपने वचन को, जो उसने वचन दिया है ना, वो पूरा करता है। उस वचन को उसने बड़ा महत्व दिया है। इसके लिए दाऊद कहता है कि मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंस उसने वचन में दिया है करके। आज हमारे पास कितना वचन है, क्या हम उस वचन पे ध्यान कभी करते हैं क्या? कितना वचन प्रभु आपको दिया है, कितना प्रॉमिस वर्स आपको दिया है, कितना सेवकों के द्वारा परमेश्वर आपको जब भी प्रार्थना करते समय आपसे भी परमेश्वर ने कितने बार बातें किया है, क्या उसे कभी ध्यान किया है? ज़रा सोच के देखिए, परमेश्वर ने उस वचन में हमें, परमेश्वर ने क्या किया है अभी तक, उसने संभाल कर, उसने उतना महत्व किया है। फरवरी में परमेश्वर अपने कलीसिया में एक प्रॉमिस वचन दिया था, मिस्र में भेजा हुआ कोई भी रोग मैं तुझे नहीं दूंगा करके कहा प्रभु ने। आज तक कितना महीना हो चुका है, आज तक प्रभु अपना वचन को संभाल कर आ रहा है कि नहीं? उसने अपना वचन को महत्व किया है कि नहीं?
क्या हम उसको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? निश्चय धन्यवाद देना चाहिए। दाऊद यही कहता है कि मैं इसीलिए उसको पूरे मन से और अपने पवित्र भवन में से, और उतना ही नहीं, उसने महत्व काम किया है, उसने अपने महत्व दिया है किस में? अपने वचन में। इसीलिए मैं परमेश्वर को क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। आप किस कारण के लिए धन्यवाद देंगे? क्या आप भी दाऊद की समान ऐसे नहीं कहेंगे, परमेश्वर आपने दाऊद को वचन देकर उसको महत्व, इतना बड़ा महत्व अपने वचन में आपने दिया है, क्या आप मेरे जीवन में नहीं करोगे? आप मेरे जीवन में अपने वचन जो दिया है पूरा क्यों नहीं करोगे? पूरा करते आ रहा है, वो और भी करेगा। और परमेश्वर को और धन्यवाद दीजिए, निराश मत होइए, धन्यवाद करना मत छोड़िए। ज़िंदगी भर जब तक अपने पास आखिरी श्वास है उतना आप, जब तब तक आपको धन्यवाद देते ही रहना है, उसको स्तुति करते ही रहना है। वो भी ऐसे वैसे नहीं, पूरे मन से आपको देना है। तब परमेश्वर देखे कितना बड़ा बड़ा आपका जीवन में अद्भुत काम करेगा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमने सुना हुआ वचन के अनुसार जिस तरह आपने बात किया है प्रभु जी, हाँ प्रभु, पूरे मन से हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए प्रभु। इतना ही नहीं प्रभु जी, अपने भवन से आपको धन्यवाद देना है प्रभु। और परमेश्वर इसीलिए आपको धन्यवाद देना है क्योंकि आपने अपने वचन को, परमेश्वर आपके नाम से अपने वचन को बड़ा महत्व समझा है प्रभु जी। कितना हम सौभाग्य लोग हैं प्रभु। आप परमेश्वर इस वचन के अनुसार अपने बच्चों को चलाइए। जो जो वचन, जो जो वादा आपने अपने बच्चों से किया है अभी तक आप पूरा करके आ रही है प्रभु जी, आगे भी कीजिए, आशीष कीजिए। इन वचनों के द्वारा अपने बच्चों को चलाइए, सुने हुए सभी को आप आशीष कीजिए। प्रार्थना सुनाए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अभी अब हम लोग थोड़े समय परमेश्वर के सम्मुख में अपने सर को झुकाकर परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग अपने आप को अर्पण कर कर परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। यह समय, थोड़ा समय, एक 5 से 10 मिनट हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को कबूल कर कर, अपने आप को दीन कर कर परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग थोड़े समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। इतने समय हम लोग परमेश्वर की स्तुति किए, गीत गाकर उसकी आराधना किए, थोड़े समय परमेश्वर की वचन को हम लोग ने ध्यान किया। लेकिन अभी परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करने वाला एक समय, एक बहुत ही मुख्यता का एक समय, यह समय में आप और परमेश्वर का बीच का एक संबंध को स्थिर करने वाला एक समय, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को उंडेल कर, अपने आप को अर्पण कर कर, प्रार्थना कर कर, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ उसके सम्मुख में आने वाला एक समय। यह समय हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को दीनता में कर कर, अपने आप को दीन कर कर परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर मैं आपके सम्मुख में आया हूँ। हम सब जन कहेंगे परमेश्वर मैं आपके सम्मुख में आया हूँ, परमेश्वर मैं आपके सम्मुख में आई हूँ। मेरी इस आराधना को पिता आप अंगीकार कीजिए। मेरी इस आराधना को परमेश्वर आपके सम्मुख में मैं अर्पण करता हूँ। हमारा परमेश्वर भला है। इतने महीने से, इतने सारे महीने से, इतने सारी कठिनाई के समय के बीच में भी परमेश्वर ने हमें अपनी आँखों की पुतली की नाई संभाल कर लेकर आया है। उसकी अनुग्रह बहुत ही महान अनुग्रह है, उसकी दया अपरंपार है। वो हम पर करने वाली दया दिन भर दिन, परमेश्वर हमारे ऊपर उसकी अनुग्रह जो है दिन भर दिन बढ़ते रहता है। उसकी अनुग्रह कैसे बढ़ता है? हम जितना उसकी आराधना करें, हम जितना उसके समीप आए, हम जितना उसको धन्यवाद करें, उतना दिन भर दिन उसकी अनुग्रह बढ़ती रहती है। परमेश्वर आज आप और हमको बचाकर इस संसार की कठिनाई से, इस संसार की बीमारियों से परमेश्वर आप और हमको बचाकर अपने सम्मुख में लेकर आया है। उतनी बड़ी महान परमेश्वर, उतना बड़ा महान परमेश्वर, हम सब जन एक बार उसके सम्मुख में अपने सर को झुकाकर परमेश्वर मैं आपके सम्मुख में आया हूँ पिता, परमेश्वर मैं आपके सम्मुख में आया हूँ पिता। हमारा परमेश्वर महान है। वो कितना महान है? वो आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाकर, इस संसार में अपनी आखिरी बूंद का लहू इस संसार में अपने लिए बहाकर आप और हमको उसने मोल लिया है। लहू बहाकर उसने मोल लिया है।
क्यों? अपने ऊपर रखा हुआ प्रेम के निमित्त, आपके ऊपर रखा हुआ प्रेम के निमित्त, आप हर एक के ऊपर रखा हुआ प्रेम के निमित्त वो हमारा परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान रहने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में अपनी सिंहासन में विराजमान रहने वाला परमेश्वर आपके लिए अपनी सिंहासन छोड़कर, मेरे लिए और आपके लिए अपनी सिंहासन को छोड़कर, अपनी कुर्सी को छोड़कर आपके लिए इस धरती में आया। जिस धरती में आकर अपने लिए अपना लहू बहाकर, हमारे अधर्मों के लिए अपनी लहू बहाकर अपने हमें उसने मोल लिया है। इतना प्रेमी परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर। हम कभी मर चुके होते, हम कहीं घूम चुके होते, पाप के दलदल में हम पड़े थे, पाप की कीचड़ में हम पड़े थे, लेकिन उस कीचड़ से हमें निकालने के लिए, उस कीचड़ से हमें निकालने के लिए इस कीचड़ के अंदर परमेश्वर ने अपना हाथ डालकर वो खुद इस कीचड़ के अंदर आकर हमें उसने इस कीचड़ से बाहर निकाला है। इतना प्रेमी परमेश्वर, इतना प्रेमी परमेश्वर। हम सब जन उसको धन्यवाद करेंगे, हम सब जन उसको धन्यवाद करेंगे। हम जितना भी धन्यवाद करें वो काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। हम धन्यवाद करते करते हमारी जीवन में उसकी अनुग्रह दिन भर दिन बढ़ते आती है। हम सब जन धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. குனிந்து தூக்கினீரே, பெரியவனாக்கினீரே, உமது காருண்யத்தால் குனிந்து தூக்கினீரே, குனிந்து தூக்கினீரே, பெரியவனாக்கினீரே, உமது காருண்யத்தால் குனிந்து தூக்கினீரே. எனது விளக்கு எரிய செய்தீர், இரவை பகலாக்கினீர். எனது விளக்கு எரிய செய்தீர், இரவை பகலாக்கினீர். எரிந்து கொண்டிருப்பேன் எப்போதும் உமக்காய், என் ஜீவன் பிரியும் வரை. எரிந்து கொண்டிருப்பேன் எப்போதும் உமக்காய், என் ஜீவன் பிரியும் வரை. எரிந்து கொண்டே இருப்பேன் எப்போதுமே உமக்காய், என் ஜீவன் பிரியும் வரை. எரிந்து கொண்டே இருப்பேன், எரிந்து கொண்டே இருப்பேன் எப்போதுமே உமக்காய், என் ஜீவன் பிரியும் வரை. எரிந்து கொண்டே இருப்பேன். நான் நம்பும் கேடகம் விடுவிக்கும் தெய்வம் நீர்தான், நீர்தான் ஐயா. நான் நம்பும் கேடகம் விடுவிக்கும் தெய்வம் நீர்தான், நீர்தான் ஐயா. தூயவர் தூயவர் துதிக்கு பாத்திரர், ஆறுதல் நீர்தானையா. தூயவர் தூயவர் துதிக்கு பாத்திரர், ஆறுதல் நீர்தானையா. தூயவர் தூயவரே,
दिख पातिररे ஆறுதல் நீதானையா தூயவர் தூயவரே தூயவர் தூயவரே துதிக்கு பாத்திரரே ஆறுதல் நீதானையா தூயவர் தூயவரே சேனைக்குள் பாய்ந்தேன் உந்தன் தயவாலே மதிலை தாண்டிடுவேன் சேனைக்குள் பாய்ந்தேன் உந்தன் தயவாலே மதிலை தாண்டிடுவேன் புகழ்ந்து பாடுவேன் உம்மையே உயர்த்துவேன் உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம் புகழ்ந்து பாடுவேன் உம்மையே உயர்த்துவேன் உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம் புகழ்ந்து பாடிடுவேன் உம்மையே உயர்த்திடுவேன் உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம் புகழ்ந்து பாடிடுவேன் புகழ்ந்து பாடிடுவேன் உம்மையே உயர்த்திடுவேன் உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம் புகழ்ந்து பாடிடுவேன் துயரத்தில் கூப்பிட்டேன் உதவிக்காய் கதறினேன் அனுகூலம் கேட்டீரையா துயரத்தில் கூப்பிட்டேன் உதவிக்காய் கதறினேன் அனுகூலம் கேட்டீரையா குனிந்து தூக்கினீர் பெரியவனாக்கினீர் உமது காருண்யத்தால் குனிந்து தூக்கினீர் பெரியவனாக்கினீர் உமது காருண்யத்தால் குனிந்து தூக்கினீரே பெரியவனாக்கினீரே உமது காருண்யத்தால் குனிந்து தூக்கினீரே குனிந்து தூக்கினீரே பெரியவனாக்கினீரே உமது காருண்யத்தால் குனிந்து தூக்கினீரே हालेलुया। इस गीत का अर्थ अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे तो वो झुककर हमारे लिए इस संसार में झुककर हमें उसने उठाया है। झुककर, कितना महान परमेश्वर। एक देवता अगर किसी के लिए झुककर किसी को उठाता है तो वो केवल हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। इस गीत में बहुत सारा अर्थ है। वो हमारे लिए, हमारे अधर्मों के लिए, वो उसके अंत में इस गीत में देखेंगे तो मैं उसी के लिए गाते रहूँगा जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मुझ में जान है तब तक मैं केवल उसके लिए गाता रहूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए झुककर इस कीचड़ से मुझे उसने उठाया है, मेरे पापों से उसने मुझे उठाया है, मेरे अधर्मों से मुझे उसने उठाया है, मृत्यु की ओर चलने वाले मुझे उसने बचाकर जीवन का मार्ग दिखाया है। इतना अच्छा परमेश्वर, जीवन का मार्ग दिखाने वाला एक ही परमेश्वर
वो हमारा यीशु मसीह। इसलिए मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक मेरे इस शरीर में जान है, तब तक मैं केवल यीशु के लिए आराधना करता रहूँगा। मैं हमेशा उसकी स्तुति करता रहूँगा, हमेशा उसकी आराधना करता रहूँगा, जब तक मेरा प्राण मुझसे अलग ना हो जाए, तब तक। क्या आज आप इस कार्य को बोल सकते हैं? क्या आप परमेश्वर से आज ये कार्य को बोल सकते हैं? परमेश्वर, जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है, तब तक, जब तक मेरे इस शरीर में ये प्राण चल रही है, जब तक मेरी ये सांसें चल रही है, तब तक मैं केवल तेरी ही आराधना करता रहूँगा, मैं केवल तेरी ही स्तुति करता रहूँगा। दिन भर दिन में तेरे सम्मुख में आकर अपनी आराधना के साथ, अपनी स्तुति के साथ मैं तेरे सम्मुख में आकर अर्पण करूँगा। क्या आज ऐसे प्रकार के अर्पणता आप करेंगे? क्या आज परमेश्वर के सम्मुख में आप ऐसे प्रकार के कार्य को परमेश्वर से कहेंगे? परमेश्वर, जीवन भर परमेश्वर ने आपको बचाया, इस पाप से बचाया, इस पाप की कीचड़ से बचाया। बदले में उसने आपसे क्या चाहा? बदले में उसने आपसे क्या चाहा? धन दौलत नहीं, ये सब नहीं चाहा, ये सब उसके पास बहुत है। वो क्या चाहा? आपका हृदय, आपका हृदय। क्या आज परमेश्वर के लिए आज आप अपना हृदय खोलकर परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरा हृदय केवल आपका है, मेरा हृदय केवल आपका है। मैं जीवन भर इस वाक्य को ध्यान में रखिए, जीवन भर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे जीवन में कष्ट, वेदना, दुख, दरिद्रपन, कंगालपन कुछ भी आए, लेकिन ये सब कार्य परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता, परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। क्या आप इसी प्रकार की अर्पणता परमेश्वर के सम्मुख में कहेंगे? क्या परमेश्वर के पास आप ऐसे प्रकार की अर्पणता आज करेंगे? परमेश्वर आज आपसे ऐसे प्रकार के कार्य को चाहता है। परमेश्वर आज आपके बीच में आकर आपसे, आपकी ज़ुबान से ऐसे प्रकार के कार्य सुनना चाहता है। मैंने तेरे लिए अपना प्राण दिया, मैंने तेरे लिए अपना आखिरी बूंद का लहू दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या देगा? बदले में तू मुझे क्या देगी? परमेश्वर आज आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, आप उत्तर दीजिए, मैं नहीं। आपके लिए आप ही उत्तर देंगे। परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को अर्पण कीजिए, अपने आप को दीन कीजिए, दीन कर इतना महान परमेश्वर, इतना महान यीशु हमारे अधर्मों के लिए इस संसार में दीनता के रूप से संसार में आते हुए, वो महान परमेश्वर जब अपने आप को दीन कर सकता है, तो आप और हम क्या है? आप और हम उसके सम्मुख में क्या है? परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को अर्पण कर हे परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख में आया हूँ, मैं आपके सम्मुख में आई हूँ, मेरी इस आराधना को अंगीकार कीजिए, मुझे अंगीकार कीजिए, मुझ में मेरे पापों को धो दीजिए, मुझे अंगीकार कीजिए करके परमेश्वर से मांगिए। मैं जीवन भर केवल आपकी आराधना करूँगा। जब तक मेरे शरीर में श्वास है, तब तक मैं आपकी आराधना करूँगा। ऐसे अर्पण करने वाले लोग अपनी सरों को झुकाकर परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद पिता, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। इस आराधना के समय में आप हमारे बीच में थे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आप इतने महान होते हुए भी अपने सिंहासन को छोड़कर इस संसार में आकर मेरे लिए, हमारे लिए, इस मनुष्य जात के लिए है परमेश्वर, आपने अपना प्राण त्याग कर, अपनी लहू का आखिरी बूंद त्याग कर परमेश्वर आपने हमें बचाया है, आपने हमें अपने पापों से छुड़ाया है। मृत्यु की घोर में जाने वाले हमको परमेश्वर आप बचाकर एक जीवन का मार्ग आपने हमें दिया है, एक जीवन का भरोसा आपने हमें दिया है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते पिता। परमेश्वर इस समय में जितने भी लोग आपके सम्मुख में, जो भी लोग अर्पण कर रहे हैं, अपने आप को जो भी लोग अर्पण करके प्रार्थना कर रहे हैं, उन हर एक को परमेश्वर आशीष कीजिए, उन हर एक की आराधना को अंगीकार कीजिए। उनके जीवन में एक बड़ी परिवर्तन होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता।
उनके जीवन में एक बड़े कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर हर एक लोगों को आशीष करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इस आराधना के द्वारा हमको आपने फिर एक बार अपनी आत्मा से भरकर परमेश्वर आपके सम्मुख में हमें अर्पण करने के लिए, अपने आप को दीन करने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। जो भी लोग आपके सम्मुख में इस आराधना के समय आए हैं परमेश्वर, उन हर एक को आप आशीष करने के लिए आपकी दया और अनुग्रह उनके परिवार पर, उनके व्यक्तिगत जीवन पर बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप हर एक को आशीष करेंगे करके विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीष कीजिए, आपके बड़े नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான காலை வேளைக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். इस अच्छे सुबह के समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। இந்த ஆராதனையின் மூலமாக इस आराधना के समय ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको अधिक आशीष करे। இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु के नाम से எல்லாருக்கும் आप सबको அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். प्रेम की बधाइयां देते हैं। நீங்க எல்லாவற்றிலும் சுகமா இருக்கும்படியாக आप सब में सुखित रहने के लिए நான் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है। நாம் இப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளா நம்ம கடந்து हम செல்லுவோம். अभी परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। கர்த்தர் நிச்சயமாகவே परमेश्वर निश्चय ही இந்த வார்த்தையின் மூலமாக इस वचनों के द्वारा தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதான காரியங்களை परमेश्वर हमें सिखाने वाले कार्यों को நாம் அதை செய்யும் பொழுது हम उसे करते समय நம்முடைய தேசத்திற்கு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை அவர் செய்வார். हमारे देश में परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। நாம் இந்த மாசத்துல हम इस महीने में ஒரு முக்கியமான ஒரு சோத்திரம் காரியத்துக்குள்ள வந்து இருக்கிறோம். एक मुख्य दिनों में हम आए हैं। இந்த ஆகஸ்ட் மாசம் 15ஆம் தேதி अगस्त 15 तारीख को நம்முடைய தேசத்தின் சுதந்திர நாளாக இது காணப்படுகிறது. हमारे देश का स्वतंत्र दिन है। இது 74வது சுதந்திர தினமா இருக்கிறது. 74th इंडिपेंडेंस डे। நம்முடைய தேசத்திற்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। தேசம் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக हमारा देश आशीषित रहने के लिए நாம் அதற்காக தேவ சமூகத்தில் நம்ம ஜெபிக்க हम வேண்டும். उसके लिए भी परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना கர்த்தர் करेंगे। ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आशीष करे। ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம். एक वचन पढ़ेंगे। 2 நாளாகமம் दूसरा इतिहास की 7ஆம் அதிகாரம் 7वां अध्याय அதனுடைய 14வது வசனம். उसका 14th वचन அதுல पढ़ेंगे। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसमें कहा गया है, நான் முதல்ல தமிழ்ல படிக்கிறேன், हम पहले तमिल में पढ़ेंगे, பிற்பாடு இந்தியில படிக்கலாம். उसके बाद हम हिंदी में என் पढ़ेंगे। நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்திலிருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் தேச பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன். तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ஆண்டவரே சொல்லி இருக்கிறார். यहाँ पर परमेश्वर ने ही कहा, ஒரு தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், एक देश अगर आशीषित होना है तो, அது சேமத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், अगर उसमें भलाइयां आना है तो அதற்கு என்ன வழிமுறைகள், उसके लिए क्या मार्ग है, என்ன செய்தால் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி क्या करेंगे तो देश आशीषित होगा करके ஆண்டவரே இந்த வசனத்தின் மூலமாக அங்க எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. परमेश्वर ने ही यह अपने वचन के अनुसार बताया இங்க है। என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? यहाँ पर क्या कहा गया है, எம் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் मेरे नाम लिए हुए मेरी प्रजा के लोग தங்களை தாழ்த்த வேண்டும், अपने आप को दीन करना है, அவர்கள் ஜெபம் பண்ண வேண்டும், वो लोग प्रार्थना करना है, என் முகத்தை தேட வேண்டும், मेरे चेहरे को ढूंढना है, பொல்லாத வழிகளை விட்டு விலக வேண்டும். अपनी बुरी चाल से फिरना है। அப்படி விலகும் பொழுது ऐसा फिरते समय பரலோகத்திலிருக்கிற நான் கேட்டு स्वर्ग में से मैं सुनकर அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து उनकी पाप को क्षमा நான் करकर தேசத்திற்கு நான் சேமத்தை நான் और கொடுப்பேன். देश के लिए मैं भलाई दूंगा। பாருங்க, ஆண்டவராகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, சோத்ரம், நான் அவர்கள் பாவத்தை நான் மன்னிப்பேன், मैं उनकी पाप को क्षमा करूंगा, அவர்கள் தேசத்திற்கு நான் சேமத்தை கொடுப்பேன். उनकी देश के लिए मैं भलाई दूंगा। நம்முடைய தேசமானது हमारा देश जो है பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்திலிருந்து ब्रिटिश के जो राज्य के समय நாம் से இன்றைக்கு நாம் விடுதலை பெற்று நமக்கு பெரிய ஒரு சந்தோஷம். हम छुटकारा पाए, वो हमारे लिए बहुत आनंदित है। நம்முடைய தேசத்தை குறித்ததான ஆண்டோட நோக்கம் நாம் நிறைவேறப்பட வேண்டும். हमारे देश के बारे में परमेश्वर
परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी होना நம்முடைய है। இந்தியா தேசத்தை ஆண்டவர் அதிகமாக அவர் நேசிக்கிறார். हमारा भारत देश से परमेश्वर अधिक प्रेम करता है। இந்தியா தேசத்தை ஆண்டவர் நேசித்தபடினாலே हमारा भारत देश से परमेश्वर प्रेम करने के निमित्त வேதத்தில் இந்தியா தேசத்துக்கு தான் பெயர் குதங்க சொல்லப்பட்டு हमारा இருக்கிறது. भारत देश का नाम हमारा शास्त्र में भी लिखा गया है। ஏன் என்று சொன்னால் क्यों करके இந்தியா देखेंगे। தேசத்தின் மீது தனிப்பட்டதான ஒரு கரிசனை நம்முடைய ஆண்டவருக்கு உண்டு. हमारा भारत देश के ऊपर एक अलग प्यार परमेश्वर के लिए है। இந்தியா தேசமானது हमारा भारत देश பல தரப்பட்ட மொழிகளால நிறைந்த தேசமா காணப்படுகிறது. अनेक भाषा के लोग यहाँ पर रहने वाला एक जगह है। பலவிதமான ஜனங்கள் இங்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். अनेक प्रकार के लोग रहने वाली एक देश है। பல முறைதான வழிபாடு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. अनेक प्रकार की जो शास्त्रीय कार्य ये हमारा देश में है। அப்ப ஆண்டவர் தேசத்தை அதிகமாக நேசிக்கிறார். हमारा परमेश्वर हमारे देश से अधिक प्रेम करता है। அப்ப இந்த 74வது சுதந்திர தினத்தன்று 74th इंडिपेंडेंस डे के दिन நாம் விடுதலை பெற்றது நமக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருந்தாலும் हम छुटकारा पाए हमारे लिए बहुत आनंदित है। फिर ஆனா भी இந்தியா தேசமானது हमारा भारत देश இன்றைக்கும் आज भी பல விதமான சோத்திர ஆசீர்வாதத்தின் குறைகளாக காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. अनेक प्रकार की आशीषों में कमीपन है करके हम देख सकते हैं। இந்தியா தேசம் இன்னும் உலகத்திலேயே हमारा भारत देश आज भी पूरे संसार में எல்லா தேசத்தை விட सारे देशों से भी எல்லா காரியங்களிலும் सारे कार्यों में அது ஆசீர்வாதம் விளங்க வேண்டும் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். आशीषित रहना है करके परमेश्वर அப்ப चाहता है। ஆண்டவர் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட நம்மளை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? आज उद्धार पाए हुए हमें देखकर परमेश्वर क्या कहता है। அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நம்மளை பார்த்தாண்டு என்ன சொல்லுகிறார்? अभिषेक पाए हुए हमें देखकर परमेश्वर क्या कहता है। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, अच्छे परमेश्वर के लोगों உன்னை இந்த தேசத்துல வைத்தது ஒரு நோக்கம் உண்டு. तुझे इस देश में रखा है तो उसके लिए एक कार्य है। உங்களை இந்த தேசத்துல தானே உன்னை பிறந்தது ஒரு நோக்கம் உண்டு. तुम्हें इस देश में जो जन्म दिया है उसके लिए एक कार्य है। அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் वो पूरा होना है तो நம் மூலமாக हमारे द्वारा இல்ல உங்கள் மூலமாக या आपके द्वारा இந்த தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் हमारा देश आशीषित होना है तो ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? परमेश्वर बोलने वाला कार्य क्या அவர் है। என்ன சொல்லுகிறார்? क्या कहता है। சோத்ரம், என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்த வேண்டும். मेरे कहलाने वाली मेरे प्रजा अपने आप को अर्पण करना அவர் है। என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? वो क्या चाहता है। இந்த தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் விரும்புகிறார். ये देश आशीषित पाना है करके चाहता है। அது அவருடைய விருப்பமாக காணப்படுகிறது. वो उसकी चाहत है। ஆனால் அவரிடத்துல ஒரு காரியம் இருக்கிறது. लेकिन उसके बावजूद एक और कार्य அவர் है। நம்மிடத்தில் என்ன விரும்புகிறார்? वो हमसे क्या चाहता है। இந்த தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக, ये देश आशीषित होने के இது लिए, சேமத்தை தரும்படியாக, इसमें भलाइयां आने के लिए முதலாவதாக सबसे पहले ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, परमेश्वर कहता है என் நாமத்தை உச்சரிக்கிற ஜனங்கள், मेरे नाम को कहने वाले मेरे लोग, என் நாமத்தை தரித்திருக்கிற ஜனங்கள், मेरे नाम धरे हुए मेरे लोग, என்னை தொழுது கொள்ளுகிற ஜனங்கள், मेरी दंडवत करने वाले लोग। அவர் முதலாவதாக சொல்லுகிறார், सबसे पहला कहता அவர்கள் है தங்களை தாழ்த்த वो வேண்டும். लोग अपने आप को दीन करना தங்களை है। அவர்கள் தாழ்த்த वो வேண்டும். लोग अपने आप को दीन करना है। நான் தங்களை அவர்கள் தாழ்த்தும் वो பொழுது अपने आप को दीन कर இந்த தேசத்திற்கு நான் சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று அவர் इस சொல்லுகிறார். देश में मैं भलाई दूंगा करके वो कहता ஆம் है। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर के लोग, ஆண்டவர் நம்மளை இந்த உலகத்துல எவ்வளவு தான் ஆசீர்வதித்தாலும், परमेश्वर हमें इस संसार में कितना भी आशीष करे, எவ்வளவு தான் நமக்கு வசதிகள் இந்த தேசத்துல கொடுத்தாலும், कितना भी हमारे देश में हमें धन दौलत दिए तो भी, நமக்கு எவ்வளவு பெரியதான சோதனம் காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்தாலும், कितने बड़े कार्य हमारे जीवन में हो तो भी, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है தேசம் உன்னால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், देश तुझसे आशीषित पाना है तो, உங்களால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், अगर आपसे आशीषित पाना है तो அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है நீங்க உங்களை தாழ்த்த வேண்டும். आप लोग अपने आप को दीन करना है। ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்ன? परमेश्वर चाहने वाला कार्य நம்மை क्या है। நாமே தாழ்த்த வேண்டும். हम लोग अपने आप को दीन करना சோதர, है। இன்னும் பாரு, இந்தியா தேசத்துல अभी देखिए भारत देश में 138 கோடி ஜனங்கள் தேசத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். 138 करोड़ लोग हमारे देश में हैं। இந்த ஜனங்கள் ये लोग, இன்னும் அறியாதவர் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள்? इनमें परमेश्वर से अनजान लोग और कितने लोग हैं। அந்த கூட்டத்தில் மத்தியில उस झुंड के बीच में அறிந்திருக்கிற ஜனங்களாகிய நாம், जानने वाले लोग हम, அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? क्या चाहता है। தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் देश आशीषित पाना है तो நம்மை நாமே தாழ்த்த हम வேண்டும். अपने आप को अर्पण இன்னைக்கு करना நம்முடைய है। வாழ்க்கையில आज हमारे जीवन में தாழ்மை என்கிறதான அந்த குணத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார். दीनता करके गुण परमेश्वर हमसे चाहता है। நீ தாழ்த்த வேண்டும். हम अपने आप
आप को दीन करना है, நம்மை தாழ்த்தும் பொழுது, हम अपने आप को दीन करते ஸ்தோத்திரம், समय, தேவ சமூகத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करते समय, தேசத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது, देश की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते समय ஆண்டவர் இறங்குவார். परमेश्वर मन उतरेगा நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में। நமக்கு ஆண்டவர் எவ்வளவுதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்ம ஸ்தோத்திரம் வரங்களை பெற்று இருந்தாலும், हमारे आत्मिक जीवन में कितने वरदान को हम पाए हुए तो भी, நமக்கு எவ்வளவுதான் கிறிஸ்தவ இந்த வாழ்க்கையில அனுபவங்கள் இருந்தாலும், मसीह जीवन में कितनी अनुभव हो तो भी, இவை எல்லாவற்றையும் விட ये सारे कार्यों से நாம் பெருமை கொள்ளாதபடிக்கு, हम बड़प्पन न पाते हो, எனக்கு இதெல்லாம் இருக்கிறது, मुझे ये सब है, எனக்கு பாடல் படிக்க கிருபை இருக்கிறது, मुझे गीत गाने के लिए अनुग्रह है, எனக்கு நிறைய வரங்கள் இருக்கிறது, मुझे अनेक वरदान है, சுகமளிக்கிற வரங்கள் இருக்கிறது, चंगाई देने वाली वरदान இப்படி है, பல வரங்கள் இருக்கிறபடினால ऐसे अनेक प्रकार की वरदान है, நமக்குள்ளாக நாம் பெருமை கொள்ளாதபடிக்கு, हम अपने अंदर बड़प्पन न होते हुए, நமக்குள்ளாக ஒரு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை விட நாம் நம்மை உயர்த்தாதபடிக்கு, परमेश्वर से भी अधिक हम अपने आप को ऊंचा न करते நம்மை हुए, நாமே தாழ்த்தி தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, अपने आप को अर्पण करके परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण இந்த करते समय, தேசத்திற்காக ஜெபிக்கும் பொழுது इस देश के लिए प्रार्थना करते समय ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, परमेश्वर कहता है, நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் मेरे नाम धरे हुए मेरे लोग தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ண வேண்டும். अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना அப்ப करना நம்ம है, அவருடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்த तब வேண்டும். हमें उसके सम्मुख में अर्पण करना பாரு, है। வேதத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, शास्त्र में कहा गया है, சோத்திரம் தன்னை தானே தாழ்த்தர் உயர்த்தப்படுவான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. अपने आप को जो दीन करता है उसे ऊंचा किया जाएगा करके कहा था। அவர் பெருமையோடு எதிர்த்து நிற்கிற தேவன். जो बड़प्पन करते हैं उनके विरुद्ध खड़ा रहने वाला எந்த மனுஷன் परमेश्वर, பெருமையோடு காணப்படுகிறார்களோ, जो भी मनुष्य के अंदर एक बड़प्पन है, அவருடைய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய பெருமைகள் இருக்கலாம், उनके जीवन में आत्मिक की बड़प्पन हो இல்ல सकती உலக है, பிரகார ஆசீர்வாதம் எனக்கு இருக்கிறது சொல்லி அந்த பெருமைகள் இருக்கலாம். या संसारिक आशीष के बारे में बड़प्पन हो सकता சில है, பேர் குடும்பத்தின் பெருமைகள் இருக்கலாம், कुछ लोगों को पारिवारिक की बड़प्पन हो सकता है, சில பேருக்கு பணம் இருக்கிற பெருமை இருக்கலாம். कुछ लोगों को पैसे का बड़प्पन हो सकता ஆனா है, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், लेकिन परमेश्वर कहता உங்க है வாழ்க்கையில तुम्हारे जीवन में நீங்க உங்களை தாழ்த்தும் பொழுது, तुम अपने आप को दीन करते நான் समय தேசத்திற்கு நான் சேமத்தை நான் கொடுப்பேன். देश के लिए भलाई को लेकर அப்போ आऊंगा। ஏன் இன்றைக்கும் இந்த தேசம் ஒரு சோத்திரம் ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லாதபடி காணப்படுற காரணம் என்ன? आज भी हमारे देश में एक आशीष की कमी है, उसके कारण क्या அப்ப है? கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு ஆசீர்வாத தேசத்திற்கு ஏன் இன்னும் கிடைக்கவில்லை? परमेश्वर चाहने वाली आशीष अब तक देश में अब तक क्यों नहीं आई? ஏனோ சேமம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை? क्यों ये भलाई नहीं आ அப்ப पाई? ஆண்டு என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर क्या कहता है? நாம் இன்னும் நம்மளை தாழ்த்தவில்லை, हम अपने आप को और अर्पण नहीं நாம் பல किए, தரப்பட்ட சோத்திரம் காரியங்களில் பிரிந்து கிடக்கிறோம். हम अनेक प्रकार के कार्यों से अलग हो पड़े हैं, அநேக விதமான சோத்திரம் காரியம் நம்ம இன்னைக்கு சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். अनेक प्रकार के कार्यों के निमित्त हमारे बीच में झगड़ा लड़ाई होती है, நான் பெரியவன் நீ பெரியவன் என்று பேசிக் கொண்டு இருக்கிறோம். मैं बड़ा तू बड़ा करके हम बातचीत करते என்னுடைய हैं, சபை தான் பெரிதா காணப்படுகிறது, हमारी कलीसिया बड़ा है, உன்னுடைய சபை சிறிதா இருக்கிறது तेरी कलीसिया छोटी है, என்று சொல்லி பல விதமான கருத்து வேறு நமக்கு காணப்படுகிறது. ऐसे अनेक प्रकार की कार्य हमारे जीवन में அப்ப है। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता உங்களை है நீங்க தாழ்த்த வேண்டும். आप लोग अपने आप को अर्पण நான் करना है। தேசத்தை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், अगर हम देश को आशीष करना है तो தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், देश में भलाई लेकर आना है அவர் तो சொல்லுகிறாரு, वो कहता है உங்களை நீங்க தாழ்த்த तुम வேண்டும். लोग अपने आप को अर्पण करना है। பிரைஸ் அல்லாஹ், हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இந்தியா தேசமானது हमारा भारत देश जो है, நீங்க இன்றைக்கு நீங்க பார்க்கும் பொழுது, अगर आप आज भी देखेंगे तो நீங்க இந்த நெட்வொர்க் அந்த சோத்திரம் அந்த காரியங்களில नेटवर्क के कार्यों में இந்தியா தேசம் வந்து हमारा भारत देश பங்களாதேசத்தை விடையும் बांग्लादेश से भी பாகிஸ்தான் தேசத்தை या விடையும் पाकिस्तान से भी பாருங்க அந்த அந்த நெட்வொர்க்ல उस नेटवर्क இன்னும் में பின்தங்கி இருக்கிறது. अब भी पीछे हैं। அதை நீங்க வாசித்திருக்கலாம் நியூஸ் பேப்பர்களிலே. न्यूज़ में आप पढ़े रहेंगे, இன்னும் சோத்திரம் அந்த சிறிய தேசத்தை விட इन छोटे देशों से भी நம்முடைய தேசமானது இன்னும் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை. हमारा देश अब भी आशीष नहीं पा அப்போ पाया। நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும், हमें प्रार्थना करना है, நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். हमें अपने आप को अर्पण करना என் है। தேசமானது हमारा देश ஆண்டவரே परमेश्वर எல்லா காரியங்களிலும் सारे कार्यों में ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கும்படியாக, एक आशीष रहने के என் लिए, தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுக்கும்படியாக हमारे देश में भलाई आने के लिए என்னை நான் தாழ்த்துகிறேன் என்று சொல்லி मैं अपने आप को अर्पण करता हूं நம்மை करके, தாழ்த்தும் பொழுது अपने आप को अर्पण करते இந்த समय நாட்களில इन दिनों में நம்முடைய தேசத்தை உயர்த்துவதற்கு ஆண்டவர் போதுமானவராக காணப்படுகிறார். हमारे देश को ऊंचा करने के लिए हमारा परमेश्वर काफी है। தேசத்தை ஆசீர்வதிப்பதற்கு அவர் உண்மையுள்ள தேவனாக அவர் காணப்படுகிறார். हमारे देश को आशीष करने के लिए वो सच्चाई का பாருங்க, परमेश्वर தேசத்துல है। எல்லாம் ஆசீர்வாதம் இருந்தால் தான், हमारे देश में सब आशीषित रहेगा तो எல்லா ही, ஜனங்கள் சந்தோஷமா இருந்தால் தான் सब लोग कुशल में रहे तो ही நம்முடைய நாமும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். हम भी इसमें आनंदित रह सकते நாம் ஒரு हैं। கடைசி
கடைசி காலத்துல வாழ்ந்து கொண்டு हम இருக்கிறோம். लोग अंतिम दिनों में जीते हैं, நாம் ஒரு கடைசி ஒரு தருணத்தில் இருக்கிறோமே அறிந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. हम एक अंतिम समय में जीते हैं। பாருங்க, देखिए எங்க பார்த்தாலும் பிரச்சனைகள், कहाँ भी देखो समस्या, எங்க பார்த்தாலும் பல உபத்திரவங்கள், कहाँ भी देखो उपद्रव, இன்னைக்கு கொள்ளை நோய்கள் பெருகி கொண்டு இருக்கிறது. आज महामारी बढ़ रही है, தேசம் இன்னைக்கு பலவிதமான உபத்திர பாதையில கடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறது. देश आज अनेक प्रकार के उपद्रव के बीच में से அப்போ जाता இந்த है। சூழ்நிலைகளில इन स्थितियों में கர்த்தர் भी நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? இப்படிப்பட்டதான கஷ்டமான சூழ்நிலைகளில் इन प्रकार के कष्ट के समयों में நீங்கள் भी உங்களை தாழ்த்த வேண்டும். आप लोग अपने आप को दीन करना நம்மை है। தாழ்த்தும் பொழுது अपने आप को दीन करते நம்முடைய समय தேசத்துல हमारे देश में ஆண்டவர் परमेश्वर சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். भलाई को दूंगा करके उसने प्रतिज्ञा दिया। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் இதை நிறைவேற்றுவார். परमेश्वर उसे पूरा करेगा। பாருங்க, ஆண்டவர் இயேசுவை நீங்க பாருங்க, परमेश्वर यीशु मसीह को அவர் देखिए, சிலுவையில் மரித்து முன்பதாக क्रूस पर मरने से पहले, அந்த சிலுவையில அறையப்படும் நேரம் வரைக்கும், क्रूस पर मारे जाने वाले समय அது तक மாத்திரமல்ல, केवल वो नहीं, தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கிற வரைக்கும் अपने प्राण को त्यागने तक பிலிப்பியில சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. फिलिपियों में कहा गया அவர் है, சிலுவையின் மரண वो பரியந்தம் क्रूस की मृत्यु तक தம்மை தாமே அவர் தாழ்த்தினார். अपने आप को उसने दीन அவர் किया। அப்படி தாழ்த்தினபடினாலே वो ऐसा दीन करने के निमित्त எல்லாவற்றையும் விட सारे कार्यों அவருடைய से நாமம் உயர்ந்ததா காணப்பட்டது. उसका नाम ऊंचा किया गया ஆம் है। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, हाँ, परमेश्वर के இயேசு लोगों, கிறிஸ்துவில் இருக்கிறதான அந்த தாழ்மை இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிறதா? यीशु मसीह के पास जो दीनता है वो हमारे बीच में है அவர் क्या? சிலுவையின் மரணத்தை தாழ்த்தினார். वो क्रूस की मृत्यु तक अपने आप को இன்னைக்கு अर्पण ஒரு किया। சின்ன சின்ன காரியத்தில் நமக்குள்ளாக ஒரு பொறுமை இல்லை. आज छोटे छोटे कार्यों में भी हमारे अंदर कुछ धीरज இன்னைக்கு नहीं சின்ன है। சின்ன காரியத்தில் நம்ம சண்டை போட்டுக் கொண்டு आज இருக்கிறோம். हम छोटे छोटे कार्यों के लिए भी झगड़ा करते நாம் हैं, பெரியதாக பேசிக் கொண்டு இருக்கிறோம். हम बड़े कार्य बोलते हैं। ஆண்டவர் இயேசுவை பாருங்க, यीशु को देखिए, அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆண்டவர். कितना महान परमेश्वर, வானத்திற்கு பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் படைத்தவர். आकाश और पृथ्वी को सर्वशक्तिमान அவர் परमेश्वर, சொல்லா கட்டளை இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वो जो कहता है वो रुकता है, कभी அவருடைய कहा கைகள் गया எல்லாம் है। அடங்கி இருக்கிறது. उसके हाथों के अंदर सब कुछ है, कहा அவ்வளவு गया है। பெரியவர். उतना महान परमेश्वर, சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் वो क्रूस की मृत्यु तक தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். अपने आप को वो दीन அந்த किया। தாழ்மையை वो दीनता को இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். आज परमेश्वर हमसे चाहता நாம் है। அப்படி ஜெபிக்கும் பொழுதுதான், इस तरह से प्रार्थना करते நம்மை समय, தாழ்த்தி ஜெபிக்கும் अपने பொழுதுதான் आप को दीन करके प्रार्थना करते ஆண்டவர் समय சொல்லுகிறாரு, परमेश्वर कहता நான் है, தேசத்திற்கு நான் சேமத்தை நான் கொடுப்பேன். देश में भलाई को लेकर आऊंगा। சரியா? ठीक है। இரண்டாவதாக நாம் பார்ப்போம், दूसरा हम देखेंगे, அதே வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது इसी वचन में देखते हैं, அங்க சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वहां पर कहा गया है, தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினார். अपनी बुरी चाल से फिरेंगे तो। 2 நாளாகும் 7:14 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, दूसरा इतिहास के 7वां अध्याय 14 वचन में कहा गया தங்கள் है, பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்ப வேண்டுமா? अपनी बुरी चालों से वो लोग मन फिरना அப்ப है। என்ன அர்த்தம்? उसका अर्थ क्या அந்த है? பொல்லாத வழிகளை விட்டு बुरे मार्गों से தேவனிடத்தில் நம்ம திரும்ப வேண்டும். परमेश्वर की ओर हमें फिरना है। Praise the Lord. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அப்படி நாம் திரும்பும் பொழுது ऐसा हम फिरते समय நான் தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி हम இருக்கிறார். देश में भलाई को दूंगा करके அப்ப परमेश्वर தேசம் कहता है। ஆசீர்வதிக்க முடியாதபடி இருக்கிற தடை என்ன? तो देश आशीषित न पाने वाला रुकावट की क्या कार्य பொல்லாத है? வழிகளை விட்டு இன்னும் மனம் திரும்பவில்லை. पूरे मार्गों से अब तक मन नहीं फिराए हैं। நம்மிடத்தில் உள்ள பொல்லாத குணங்கள், हमारे अंदर की जो बुराई की जो गुण है, நமக்கு ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத சுபாவங்கள், परमेश्वर की अप्रिय स्वभाव जो है, இது எல்லாம் ये सब தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு தேசத்திற்கு இது தடையாக காணப்படுகிறது. परमेश्वर की आशीष के लिए, देश के लिए एक रुकावट है। அப்போ நம்ம அது திரும்ப வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். इससे मन फिराना है क्योंकि परमेश्वर அந்த कहता பொல்லாத है வழியை விட்டு திரும்புங்க. कि बुरे मार्गों से मन फिराना है। திரும்பும் பொழுது मन फिराते समय தேசத்திற்கு சேமத்துவத்தை சொல்லி இருக்கிறார். देश में भलाई दूंगा करके परमेश्वर பாருங்க, कहता है। நாம் ஒவ்வொரு நாளும் तो हर एक दिन நாம் சிலுவைக்கு முன்பதாக हम क्रूस के सामने நம்மை ஆராய்ந்து अपने आप को जांच அவர் कर, கொடுத்த ரட்சிப்பை காத்துக்கொள்ள वो வேண்டும். दिया हुआ उद्धार को हमें संभालना है। பாருங்க, அவர் விரும்புகிற காரியத்தை நம்ம செய்ய वो வேண்டும். चाहने वाले कार्य को हमें पूरा करना है। தேவன் விரும்புகிற காரியங்களை நம்ம செய்து, परमेश्वर चाहने वाले कार्य को पूरा करके, சோதரம் நாம் விரும்பாத காரியங்களை விட்டு விட்டு न चाहने वाले कार्यों को छोड़कर நாம் மனஸ்தாபப்பட்டு हम मन पछताव करते தேவனுடைய சமூகத்தை நம்ம தேட வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख में हमें खोजना है। Praise the Lord. हालेलुया। தேவனுடைய சமூகத்திலே தேடும் பொழுது परमेश्वर के सम्मुख में हम ढूंढते நம்முடைய समय தேசத்திற்கு அவர் இறங்குவார். हमारे देश के लिए वो उतरेगा, தேசத்திற்கு அற்புதம் செய்வார். देश के लिए अद्भुत कार्य करेगा, தேசத்திற்கு ஒரு சேமத்தை அவர் கொடுப்பார். देश के लिए एक भलाई देगा। சோதர ஆண்டவர் இதைத்தான் விரும்புகிறார். परमेश्वर वही चाहता நம்முடைய है। தேசம் மனம் திரும்ப வேண்டும். देश मन फिराना है, நம்முடைய என் ஜனங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். मेरे लोग मन फिराना है, பொல்லாத வழியில விட்டு திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். बुराई के मार्गों से मन फिराना है क्योंकि தேச
தேசத்தை எங்கே நீங்க பார்த்திருங்கள். देश में अब आप देखे हैं, கொஞ்சம் சுற்றி பாருங்கள். थोड़ा आजू बाजू घूम कर देखिए, கொஞ்சம் யோசிங்க தேசத்தை குறித்து. जरा देश के बारे में सोच कर देखिए. தேசத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் பொல்லாப்பு காணப்படுகிறது. देश में जहाँ देखे तो भी बुराई है, எங்கு பார்த்தாலும் தீமைகள் காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. जहाँ भी देखे तो बुराई दिखता है. தேசத்தில் ஒரு சமாதானம் இல்லை. हमारे देश में एक समाधान नहीं है. தேசத்திற்கு ஜனங்கள் இன்னைக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. देश के लोगों के बीच में सुरक्षा नहीं है. பல ஆபத்துகள் நேரிட்டு கொண்டு இருக்கிறது. अनेक प्रकार की संघर्ष यहाँ पर है. பல விதமான பொல்லாப்பு தேசத்துல காணப்படுகிறது. अनेक प्रकार की बुराई इस देश में है. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் நடைபெறா வேண்டும் இருக்கும் என்று इस சொன்னால் प्रकार के कार्य अगर पूरा न हो रहा है तो நாம் முதலாவதாக हम सबसे पहले பொல்லாத வழியில விட்டு நம்ம திரும்ப வேண்டும். बुराई की मार्गों से हमें मन फिराना है. திரும்பும் பொழுதுதான் फिर मन फिराते நம்முடைய समय தேசத்திற்கு हमारे देश में நம் மூலமாக हमारे द्वारा ஒரு சேமத்தை ஆசீர்வாதம் நம்மால கொடுக்க முடியும். एक भलाई और आशीष को हम दे पाएंगे. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. அப்ப நம்முடைய தேசமானது हमारा देश ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு தேசமாக एक आशीषित देश बनकर இது காணப்படும் என்று நம்ம சொல்ல முடியும். ये दिखाई देगा करके हम कह सकते हैं. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. தேச சேமத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார். देश में वो भलाई देना चाहता है. அப்போ பொல்லாத வழிகளை விட திரும்ப வேண்டும். बुरे मार्गों से हमें फिरना है. திரும்பும் பொழுதுதான் फिरते समय ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஆசீர்வாதம் परमेश्वर चाहने वाली आशीष நம்முடைய தேசத்துல இருக்கும். हमारे देश में रहेगा. Praise the Lord. हालेलुया. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, நாம் இந்த நாட்களில் हम इन दिनों में நம்முடைய மன விருப்பப்படி வாழாதபடிக்கு अपने मन की इच्छा के अनुसार न जीते நமக்கு हुए, எது பிரியமோ, हमारे लिए क्या भलाई நமக்கு है, எது நன்மை என்று தோன்றுகிறதோ हमारे लिए क्या अच्छा है, அதன் सोचता है, அதன் பிரியப்படி வாழாதபடிக்கு उसके अनुसार न जीते हुए கர்த்தர் எதை விரும்புகிறார்? परमेश्वर किसे चाहता என் है? தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக, हमारा देश आशीषित होने के என் लिए, தேசத்துல சேமத்தை வரும்படியாக हमारे देश में भलाई आने के ஆண்டவர் लिए என்ன வழி நடத்தி எதிர்பார்க்கிறார் परमेश्वर हमसे क्या चाहता है என்று சொல்லி ऐसा कहकर ஆண்டோட வழிக்கு திரும்பும் பொழுது परमेश्वर की मार्ग की ओर फिरते समय தேசத்துல देश में ஆண்டவர் சேமத்தை கொடுப்பார். परमेश्वर भलाई ले आएगा. இயேசு சொன்னாரு, यीशु ने कहा, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். मैं ही मार्ग सत्य और जीवन அப்ப हूँ. அந்த வழியில उन मार्गों में எல்லா ஜனங்களும் திரும்பும் பொழுது, सारे लोग फिरते समय இயேசு பக்கம் திரும்பும் பொழுது, यीशु की ओर फिरते நம்ம समय இந்தியா தேசமானது हमारा भारत देश ஒரு சேமம் நிறைந்த தேசமாக एक भलाई से भरा हुआ एक देश, ஆண்டவர் அதை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर उसे आशीष करेगा. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. அப்ப முதலாவதாக सबसे पहले நம்மை தாழ்த்த हम வேண்டும். अपने आप को अर्पण करना है. இரண்டாவதாக दूसरा, நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். हमें मन फिराना है. எதை விட்டு? किसे छोड़कर? பொல்லாத வழிகளை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும். बुरे मार्गों को छोड़कर मन फिराना சரி, है. மூன்றாவதா பார்க்கும் பொழுது तीसरा हम देखेंगे तो 1 தீமோத்தேயு पहला तीमुथियुस 2ஆம் அதிகாரம் दूसरा अध्याय, அங்க 1 அழகாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसमें पहले में कहा गया है, என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? क्या कहा गया है? நான் பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில், सबसे अच्छा प्रदान बोलने वाली बुद्धि क्या है? புத்தியின் எல்லா மனுஷருக்காகவும் सारे मनुष्यों के लिए விண்ணப்பங்களையும் विनतियों को, ஜெபங்களையும் प्रार्थनाओं को சோத்திரங்களை நீங்க பண்ண और வேண்டும். स्तुति को आपको करना है. ஹalleluya. हालेलुया. 1 தீமோத்தேயு पहला तीमुथियुस 2ஆம் அதிகாரம் दूसरा अध्याय, அது 1 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसका एक वचन में कहा गया என்ன है, சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? क्या कहा गया है? தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் हमारा देश आशीषित पाना है तो அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் प्रेरित पौलुस தன்னுடைய உடன் ஊழியக்காரனாகிய अपने साथी सेवक தீமோத்தேயுக்கு சொல்லுகிறார், तीमुथियुस को कहता है, இன்னொரு புத்தி சொல்லுகிறார், मैं एक बुद्धि कहता है, எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜெபங்களையும் சோத்திரம் நீங்க ஏறெடுக்க வேண்டும். सारे मनुष्य के लिए विनती और प्रार्थना को पूरा करना है. எல்லா மனுஷருக்காகவும். सारे मनुष्य के लिए. நம்ம தேசத்துல 138 கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். हमारे देश में 138 करोड़ लोग रहते அவர்கள் हैं. எல்லாரும் वो सब लोग நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள். हमारे भाई बहन हैं. அவர்கள் நம்ம தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள். हमारे देश के लोग हैं. நம்முடைய தேசத்தை இயேசு நேசிக்கிறபடியால் हमारे देश से यीशु प्रेम करता है. அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? तब यीशु क्या कहता நம்ம है? எல்லா ஜனங்களுக்காக सारे लोगों के लिए ஜெபம் பண்ண வேண்டும். प्रार्थना करना है. Praise the Lord. हालेलुया. ஒரு குறுகிய ஒரு வட்டத்துக்குள்ள இருக்காதபடிக்கு, एक छोटे से एक सर्कल में ना रहते சோதர हुए, ஒரு குறுகிய பார்வையோடு கூட நம்ம एक ஜெபிக்காதபடிக்கு, छोटी नजर से हम प्रार्थना ना करते இன்னும் हुए, நம்முடைய குடும்பத்திற்கு மாத்திரம் ஜெபிக்காதபடிக்கு, केवल हमारे परिवार के लिए ना प्रार्थना करते கொஞ்சம் हुए, ஒவ்வொரு இந்தியா தேசத்துடையதான ஜனங்களை கொஞ்சம் யோசித்து थोड़ा பாருங்கள். हमारा भारत देश के लोगों को भी सोचकर देखना அவர் है. எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்கள், वो लोग किस स्थिति में हैं, எப்பேற்பட்டதான
வழிகளை போய் கொண்டு किस இருக்கிறார்கள். प्रकार की मार्गों में वो लोग चलते हैं। இன்றைக்கு பாருங்கள், आज देखिए இந்த தேசம் பாவங்களால நிரம்பி கொண்டு இருக்கிறது. हमारे देश पाप से भरा पड़ा है। எங்கு பார்த்தாலும் கொலைகள், जहाँ भी देखे तो मारपीट होता है கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் நடைபெறுகிறது. या फिर बलात्कार की स्थिति हमारे देश में இப்படி दिखाई देता பல है। காரியங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க நியூஸ்ல பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம். ऐसा हर एक प्रकार के कार्य न्यूज में हम देखते रहेंगे। பாவம் பெருகி கொண்டே இருக்கிறது. पाप की बढ़ोतरी हो रही है। மனிதர்கள் இன்றைக்கு பாவம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். मनुष्य आप आज पाप कर रहे हैं। பாவத்தை தண்ணீரை போல பருகி கொண்டே இருக்கிறார்கள். पाप को पानी की समान वो लोग पीते हैं। இன்னைக்கு அவர்களுக்கு பாவம் என்றது தெரியவில்லை. आज अनेक को पाप पाप करके नहीं पता செய்கிற चलता। காரியம் அவர்களுக்கு என்னது தெரியாமல் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். करने वाले कार्य क्या कर रहे हैं ना समझ के अनुसार करते हैं। இந்த அழிவை தேடிக் கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்காக, इस नाश को ढूंढ कर आने वाले लोगों के लिए, நரகத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்காக नरक की ओर जाने वाले लोगों के लिए ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, परमेश्वर कहता நீ है எல்லா மனுஷருக்கா நீங்க ஜெபிக்க आप लोग வேண்டும். सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना है। Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। ஆண்டவருடைய விருப்பம் என்ன பார்த்துன்னு சொன்னீங்கன்னா, परमेश्वर की चाहत क्या है देखेंगे இந்தியா तो தேசத்திலுள்ளதான हमारा भारत देश के ஒவ்வொரு குடிமகனும், हर एक जो व्यक्ति, ஒவ்வொருவரும் हर एक जन ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். उद्धार पाना है। வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, शास्त्र में कहा गया ஒரு है பாவி கூட एक पापी भी அவருக்கு கெட்டு போக சித்தம் இல்ல. वो बिगड़ जाए उसकी इच्छा नहीं। அது மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, ஒரு பாவி ரட்சிக்கப்பட்டால், एक पापी उद्धार पाया तो ஒரு भी, இந்தியன் ரட்சிக்கப்பட்டால், एक भारतीय अगर उद्धार पाया तो भी நம்முடைய பரலோகத்துல हमारे स्वर्ग में பாருங்க பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும். बहुत ही आनंद होता है। எவ்வளவு சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும். कितना आनंद होता है ஒரு மனிதர் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது एक मनुष्य उद्धार पाते அந்த समय பரலோகமே वो स्वर्ग ही அந்த மனிதனுக்காக वो मनुष्य के लिए எழும்பி கை தட்டும். उठकर ताली बजाएगी। அந்த பரலோகமே वो स्वर्ग ही அந்த மனிதனுக்காக वो मनुष्य के लिए கெம்பிரித்து பாடும். उठकर आनंदित ஓ, होगा। இந்த மனிதன் ஒரு காலத்துல விபச்சாரக்காரனா இருந்தான், ये मनुष्य एक दिन में व्यभिचार का था, ஒரு காலத்துல கொலைகாரனாக வாழ்ந்திருந்தான். एक दिन में ये हत्यारा था, ஆனால் இன்றைக்கு लेकिन आज அந்த பரலோக வாழ்வை பெற்று விட்டார் என்று சொல்லி स्वर्ग राज्य को पा लिया है அந்த करके பரலோகமே वो स्वर्ग ही அவளை தட்டி வரவேற்கும். उनको ताली बजाकर அதுதான் बुलाएगी। அதுதான் கர்த்தருடைய விருப்பம். वही परमेश्वर की चाह அப்போ है। நம்முடைய தேசம் சோதரா அதாவது சேமத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் हमारे देश में अगर भलाई को देना है तो நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? तो तीसरा में क्या करना எல்லா है? மனுஷருக்காக நம்ம ஜெபிக்க सारे வேண்டும். मनुष्यों के लिए हमें प्रार्थना करना है। அக்கம் பக்கம் ஜனங்களுக்காக நீங்க ஜெபிக்க आजू வேண்டும். बाजू के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना வேலை है। செய்கிறவங்களுக்கு ஜனங்களுக்கு கூட இருக்கிறவங்க நீங்க ஜெபிக்கணும். काम करने वाले साथ में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना காலேஜ் करना है। படிக்கிறவங்க பிள்ளைகளுக்காக நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும். कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நீங்க ஜெபிக்க स्कूल வேண்டும். में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। எல்லா மனிதருக்கும் सारे मनुष्य ஒரு மனுஷன் விட்டுவிடக்கூடாது. एक भी मनुष्य को नहीं छोड़ना है। எல்லாருக்கும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி सबके लिए प्रार्थना करना है। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் प्रेरित पौलुस தீமோத்தேயு மூலமாக तीमुथियुस के द्वारा இன்றைக்கு நமக்கும் அவர் சொல்லுகிறார். आज हमें भी वो कहता है। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லா மனுஷருக்காக ஜெபிக்கணும். सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना அப்படி है। ஜெபிக்கும் பொழுது ऐसा प्रार्थना करते இந்த समय தேசத்திற்கு इस देश में ஆண்டவர் ஒரு பெரிய ஒரு சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி வாக்களித்திருக்கிறார். परमेश्वर बड़ी भलाई को दूंगा करके उसने प्रतिज्ञा दी। ஆமென். आमेन। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது दूसरा हम लोग देखेंगे, வாசிப்போம். पढ़ेंगे 1 தீமோத்தேயு पहला तीमुथियुस के 2ஆம் அதிகாரம் दूसरा अध्याय 2இல் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, दूसरा वचन में कहा गया நாம் है எல்லா हम பக்தியோடும் सारे भक्ति के साथ நல்லொழுக்கத்தோடும் अच्छाई के साथ கலங்கம் இல்லாமல் कुछ बुराई के बिना அமைதியுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படி शांति का जीवन बिताने के लिए ராஜாக்களுக்காகவும் राजाओं के लिए அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்காகவும் अधिकारियों के लिए அப்படியே நீங்க செய்ய வேண்டும். इसी तरह से आप लोग करना இங்க என்ன है। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? यहाँ पर क्या कहा गया है? என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? क्या कहा गया है? எல்லா பக்தியோடும் सारे भक्ति के साथ நல்லொழுக்கத்தோடும் और भलाई के साथ கலங்கம் இல்லாம அமைதியுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படி शांति का जीवन बिताने के लिए ராஜாக்களுக்காக राजाओं के लिए அதிகாரம் உள்ள யாருக்கா ஜெபிக்கணுமா? अधिकारी में रहने वाले हर एक के लिए அப்போ நம்மளை ஆளுகை செய்கிற हमें राज करने वाले அதிகாரிகளுக்காக अधिकारियों के लिए தலைவர்களுக்காக बड़े लोगों के लिए ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. प्रार्थना करना है क्योंकि शास्त्र हम அது सिखाता நம்ம है। விழுந்த கடமை. हमारे ऊपर गिरा हुआ एक फर्ज है। எல்லா அரசியல் தலைவர்களுக்கும் सारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए அவர்களுக்கு நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். उनके लिए हम लोग प्रार्थना करना है। அவர்கள் வந்து वो लोग आकर நம்ம தேசத்தை நடத்துகிறார்கள். हमारे देश को चलाएंगे। நம்முடைய தேசத்தின் மீது அவர்களுக்கு அதிகாரம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். हमारे देश के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार நீங்க देता ஒன்று है। நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். आप लोगों को एक चीज समझना है, ஆண்டவர் கொடுக்கிற அதிகாரமே அல்லாமல் परमेश्वर देने वाले अधिकार के बिना மற்ற எந்த அதிகாரத்தினாலும் बाकी दूसरे अधिकार से भी ஒரு தேசத்தை தலைவர்கள் ஆளுகை செய்ய முடியாது. एक देश के जो अधिकारी है वो राज्य அப்ப नहीं कर இன்றைக்கு सकते। நம்ம ஆளுகை செய்கிற இந்த அரசாங்கத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். आज हमें राज्य करने वाले
वाले जो पॉलिटिक्स है उनके लिए प्रार्थना இந்த करना है। அரசாங்கத்துல சோதரம் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்கும் நம்ம ஜெபிக்க इस வேண்டும். गवर्नमेंट में रहने वाले हर एक लीडर्स के लिए हमें प्रार्थना ஏன் करना है। அவர்கள் ஜெபிக்க வேண்டும்? क्यों उनके लिए प्रार्थना करना அவர்கள் है? தேசத்திற்கு उनके देश के ஒரு लिए ஆசீர்வாதமான திட்டங்களை, एक आशीषित कार्यों के लिए, சோதரம் நல்ல காரியங்களை अच्छे कार्यों के அவர்கள் लिए செய்யும்படியாக वो करने के लिए கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर ने ज्ञान देना है। Praise the Lord. Hallelujah. இந்த தேசத்தை எப்படி உலக அரங்கில முதலாவதா கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி, इस देश को इस संसार में सारे देशों से पहले स्थान में कैसे लेकर आना எப்படி है, ஆசீர்வதிக்கலாம் என்று சொல்லி, कैसे आशीषित कर सकते हैं करके அப்ப தேவ ஞானம் அவளுக்கு இருக்கும்படியாக परमेश्वर की ज्ञान उनके अंदर रहने के लिए, அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் अधिकार में रहने वाले हर एक के लिए ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மளுக்கு எதிர்பார்க்கிறார். प्रार्थना करना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, நம்முடைய ஜெபம் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது? हमारी प्रार्थना आज कैसी है? நாம் இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம்? हम किस तरह से प्रार्थना करते அது हैं? மாத்திரமல்ல, उतना ही நம்ம नहीं, தேசத்தின் தலைவருடைய பாதுகாப்புக்காக நம்ம ஜெபிக்க हमारे வேண்டும். देश के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना பாருங்க, करना है। ஜெபிக்க வேண்டும். प्रार्थना करना है, அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட वो வேண்டும். लोग सुरक्षित रहना है, அவர்கள் நம்முடைய தலைவர்கள் அல்லவா? वो लोग हमारे अधिकारी है, அவர்கள் நம்ம நேசிக்கிறவர்கள் அல்லவா? हमसे प्रेम करने वाले लोग, அவர்கள் பூரணமான வயதுள்ள வாழ वो வேண்டும். लोग पूरे रीति से बुजुर्ग होकर तक जीना है, அவர்கள் சுகமாக வாழ वो लोग வேண்டும். सुखित जीना है, அவர்கள் பாதுகாப்பு वो இருக்கும்படியாக लोग सुरक्षित रहने के लिए அவர்களுக்கு उनके लिए எந்த விதமான कोई भी प्रकार का ஆபத்துகள் வந்து விடக்கூடாது. संकट नहीं आना है, எந்த விதமான சோதரம் விபத்து வந்து விடக்கூடாது, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आनी है, வரக்கூடாது என்று சொல்லி नहीं आना है அவருடைய करके பாதுகாப்புக்காகவும் उनकी सुरक्षा के அவருடைய लिए தலைவர்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். हमारी जो लीडर्स के लिए प्रार्थना நமக்கு करना है, கொடுத்திருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டருக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். हमें दिया हुआ प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना பிரசிடென்ட்டுக்காக करना है, நம்ம ஜெபிக்கணும். प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना ஒவ்வொரு करना है, அமைச்சர்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். हर एक जो लीडर्स के लिए प्रार्थना करना है, அதுதான் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वही कहा गया है, அதிகாரமுள்ள யாவருக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். अधिकार में रहने वाले हर एक के लिए प्रार्थना நம்முடைய करना நம்முடைய है, ஏரியாவில் இருக்கிறதான हमारे एरिया में रहने वाले கவுன்சிலருக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். काउंसलर के लिए प्रार्थना करना है, எம்எல்ஏக்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் एमएलए के लिए प्रार्थना करना என்று है, சொல்லிதான் ऐसा कहकर இந்த ही வேதத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. शास्त्र में कहा गया है। Praise the Lord. Hallelujah. அப்படி நம்ம ஜெபிக்கும் ऐसा பொழுதுதான் हम प्रार्थना करते समय அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து उनके लिए ज्ञान அப்ப देकर தேசத்தை देश में அந்த ஆசீர்வாதமான வழிக்கு நடத்தி தரும்படியாக आशीषित मार्ग में चलाने के ஆண்டவர் लिए தலைவர்கள் மூலமாக परमेश्वर इन लोगों के ஒரு द्वारा பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் கட்டளையிடுவார். बड़ी आशीष को वो आज्ञा அதை देगा। ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, वही परमेश्वर कहता है, எல்லா மனுஷருக்காகவும் सारे मनुष्य के लिए நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். हमें प्रार्थना करना है करके सिखाता है। இதெல்லாம் நல்லதுதான். ये सब अच्छा ஆனால் இந்த है, முக்கியமான காரியம் என்னென்று பார்க்கும் பொழுது लेकिन इससे मुख्य कार्य क्या है? அடுத்தபடியாக दूसरा, நாம் திறந்த வாசலுக்காக நம்ம ஜெபிக்க खुले வேண்டும். द्वार के लिए हमें प्रार्थना करना है। Praise the Lord. हालेलुया। என்ன திறந்த வாசல்? कौन सी खुले हुए द्वार? இன்னைக்கு சுவிசேஷம் அடைக்கப்பட்டதான ஒரு சோத்திரம் ஒரு வாசல் இருக்கலாம். आज सुसमाचार के लिए एक बंद द्वार रह सकता அப்ப है, தேவ வசனம் போகாதபடி இருக்கிறதான அந்த வாசல் அடைப்படக்கூடாது. तो परमेश्वर की वचन को रोके जाएं ऐसी वो द्वार को बंद नहीं किया ஒரு जाना திறந்த है। வாசலுக்காக ஜெபிக்கணும். एक खुले द्वार के लिए हमें प्रार्थना करना है। வாசிக்கலாமா? पढ़ेंगे கொலோசியர் कुलोसियों की पुस्तक 4ஆம் அதிகாரம் चौथा अध्याय அது 4ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसका चौथा वचन में कहा गया है, பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है திருவசனம் சொல்லும்படியான उसके वचन को कहने के लिए வாசலை தேவன் திறந்தள்ளும்படி द्वार को परमेश्वर खोलने के लिए எங்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। இங்க என்ன சொல்லுகிறார்? यहाँ पर क्या कहता அப்ப है? திருவசன வாசலை அவ்வாறாக திறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் उसकी वचन को अगर खोलना है तो பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? पौलुस क्या कहता है? ஆண்டவரே, நீங்க தான் எங்களுக்கு திறக்கணும் ஐயா. परमेश्वर आप ही हमारे लिए खोलना है। தேவன் திறந்தள்ளும்படி परमेश्वर खोलने के लिए எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். हमारे लिए विनती அந்த कीजिए। கொலோசிய சபையில அவர் சொல்லுகிறார், कुलूसियों की कलीसिया में कहता है அந்த பட்டணத்துல சுவிசேஷம் பரவும்படியாக उस शहर में सुसमाचार फैलने के लिए, அந்த பட்டணத்துல ஆண்டோட வசனம் அவ்வாறாக போகும்படியாக उस शहर में परमेश्वर के वचन जाने के लिए பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है தேவன் அந்த திறந்த வாசலை திறக்க வேண்டும். परमेश्वर उस द्वार को खोलना है। ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், परमेश्वर कहता இதோ है, நான் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பா ये வைத்திருக்கிறேன், मैं खुला द्वार तेरे सामने रखता அதை हूँ, ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். उसे कोई भी बंद नहीं कर தேவனுடைய पाएगा। பிள்ளைகளே, परमेश्वर के நம்முடைய लोगों, இந்தியா தேசத்திலும் हमारा भारत देश में சுவிசேஷம் அறிவிக்கும்படியாக सुसमाचार बांटने के लिए, திறந்த வாசலை ஆண்டவர் உண்டாக்கும்படியாக खुला द्वार को परमेश्वर நம்ம बनाने के लिए அதற்காக நம்ம ஜெபிக்க हम வேண்டும். उसके लिए प्रार्थना करना है। தலைவர்கள் வாசல் அடைக்க முடியாது, सारे जो लीडर्स है ये लोग बंद नहीं कर सकते, வாசலை திறக்க முடியாது.
முடியாது. जो खोल भी नहीं सकते. நாம ஜெபிக்கணும். हम प्रार्थना करना है. ஆண்டவர் परमेश्वर நம்ம தேசத்தின் தலைவர்களால் பேசி हमारे देश के लीडर से बातें இந்த करते हैं. சுவிசேஷ வாசல் திறக்கும்படியாக समाचार की द्वार खोलने के நாம் लिए அதற்காக நம்ம ஜெபிக்க हम வேண்டும். उसके लिए प्रार्थना करना நம்ம है. தேசத்திலே हमारे देश में எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான இயேசுவை அறியவில்லை. कितने लाखों लोग यीशु को नहीं जाने हैं. ஆலயம் இல்லாத अनेक கிராமங்கள் இருக்கிறது. कलीसिया के बिना कितने सारे गांव हैं. இந்த கிராமத்தில் உள்ள इस गांव के எல்லா மக்களும் सारे लोग இயேசுவை அறிந்து கொள்ளும்படியாக यीशु को जानने के ஆண்டவருடைய लिए சுவிசேஷம்படியாக परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा यीशु को अपनाने அந்த के लिए சுவிசேஷத்தின் வாசல்கள் திறக்கும்படியாக सुसमाचार की द्वार खुले जाने के நாம் लिए ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி हमें प्रार्थना करना है. இங்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. यहाँ पर कहा गया है. அதைத்தான் பவுல் சொல்லுகிறார். वही पौलुस कहता है. தேவன் திறந்த வாசலை திறக்க வேண்டும். परमेश्वर ने खोले हुए द्वार को खोलना है. நம்ம தேசத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते அந்த समय வசனம் वो वचन சோத்திரம் திறந்த வாசலாக உள்ள வசனமானது खुले द्वार बनकर रहने वाला वचन அந்த வசனம் தேவனுடைய ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் हर एक परमेश्वर के बच्चों நம்முடைய को தேசத்துக்குள்ளாக கடந்து போய் हमारे देश में आकर ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் அது ஆசீர்வதிக்கும். हर एक लोगों को वो आशीष करेगा. இந்த வசனத்தின் மூலமாக इस वचन के द्वारा தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग பேசுகிற வார்த்தையின் மூலமாக बोलने वाले वचन के द्वारा ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். लोग उद्धार पाएंगे. ஹalleluya. हालेलुया. மனுஷன் உலகம் முழுதும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் मनुष्य पूरे संसार को कमा लिया तो தன் भी ஜீவனை और अपने जीवन நஷ்ட को லாபம் என்று சொல்லப்பட்டு अगर இருக்கிறது. नष्ट किया तो उसका क्या लाभ है. எல்லாவற்றிலும் பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம், सबसे महान आशीष, பெரிய ஒரு காரியம் என்ன என்று सबसे சொன்னால் महान कार्य क्या है. ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். लोग उद्धार पाना है. அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டால் போதும். वो लोग उद्धार पाए तो काफी है. தேசத்துல देश में ஆண்டவர் சேமத்தை அவர் கொடுத்து परमेश्वर விடுவார். भलाई को ले आएगा. உண்மையான இயேசுவை हम वो सच्चाई का परमेश्वर ஜீவனுள்ள यीशु को, தேவனை वो जीवित यीशु को அவர்கள் கண்டு கொள்ளும் பொழுது वो लोग देखते ஒரு समय பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் தேசத்தில் एक கட்டளையிடுவார். बड़े आशीष को परमेश्वर देश में आज्ञा பாருங்க, देगा. பவுல் கொரிந்து பட்டணத்துக்கு கடந்து வரும் பொழுது पौलुस कुरिन्थियुस के शहर में आते அந்த समय சுவிசேஷத்தை அங்க அவர் பிரசங்கிக்கும் பொழுது सुसमाचार को वहां बांटते समय அந்த சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிற சமயத்துல सुसमाचार प्रचार करने वाले அந்த समय में கொரிந்தியர் பட்டணத்தில் உள்ள அநேகர் कुरिन्थियों के शहर के अनेक लोग சுவிசேஷத்தை கேட்டு सुसमाचार को सुनकर அவர்கள் விசுவாசித்து वो लोग विश्वास அவர்கள் करते ஞானஸ்தானம் பெற்றாண்டு சொல்லப்பட்டு वो लोग இருக்கிறது. बपतिस्मा पाए करके कहा गया है. அப்படிதான் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ऐसा ही कहा गया है. அந்த கொரிந்து பட்டணத்துல कुरिन्थियुस के शहर में ராத்திரிக்கு கர்த்தர் பவுலுக்கு தரிசனமானார். रात में परमेश्वर पौलुस को दर्शन दिए. பவுலை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னாரு, पौलुस को देखकर परमेश्वर ने நீ कहा, பயப்படாமல் நீ பேசு, तुम बिना डरे बात நீ कर, மௌனமா இராதே, तो चुप ना रह, நான் உன்னோடு கூட मैं இருக்கிறேன், तेरे साथ हूँ. உனக்கு தீங்கு செய்யும்படிக்கு तुझे बुराई करने के लिए ஒருவனும் कोई भी உன்மேல் கை போடுவதில்லை. तेरे ऊपर हाथ नहीं இந்த डालेगा. பட்டணத்துல इस शहर में எனக்கு अनेक ஜனங்கள் मेरे இருக்கிறார்கள். लिए अनेक लोग ஆம் हैं. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, हम परमेश्वर के என்னுடைய लोग பாரத தேசத்துல, हमारे भारत देश में, நம்முடைய பாரத தேசத்துல हमारे भारत देश में ஆண்டவருக்காக परमेश्वर के लिए அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். अनेक लोग हैं. ஆமென். ஆமென். நாம் பயப்படாதபடிக்கு, हम न रहते हुए, நாம் हम மௌனமாயிராதபடிக்கு चुप न रहते हुए, தேவனுடைய வாசல் திறக்கும்படியாக, परमेश्वर के द्वार खुलने के சுவிசேஷ लिए, வாசல்கள் திறக்கும்படியாக सुसमाचार के द्वार खुलने के நாம் लिए தேவ சமூகத்துல ஜெபிக்க हम வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना है. ஹalleluya. हालेलुया. பாருங்க, அந்த கொரிந்து பட்டணத்துல देखिए इस कुरिन्थियुस के शहर में பவுல் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேச நிமித்தமாக पौलुस परमेश्वर की वचन को बातचीत ஜனங்கள் करने के लिए ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். लोग उद्धार पाए. இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியாதபடிக்கு सुसमाचार प्रचार न करते हुए சாத்தான் பல திட்டங்களை கொண்டு வரலாம். शैतान अनेक प्रकार की प्लान कर सकता है. தேசத்துல பல சட்டங்களை கொண்டு வரலாம். देश में अनेक प्रकार के रूल ले आ सकता விரோதிகள் है. எழும்பலாம். विरोधियों को उठा सकता है. எப்படி எழும்பினாலும் कैसे भी उठे तो भी நாம் தேவ சமூகத்துல हम ஜெபிக்கணும். परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना है. ஆண்டவரே, परमेश्वर இந்த தேசத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக इस देश की आशीष के लिए ஒரு திறந்த வாசலை एक खुले இந்த द्वार தேசத்துல தாங்க வேண்டும் என்று நம்ம ஜெபிக்க हमारे देश வேண்டும். में दीजिए करके प्रार्थना करना है. பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया. சுவிசேஷம் அறிவிப்பது, सुसमाचार प्रचार करना, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்லுவது परमेश्वर के वचन को बांटना ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் விழுந்த அது கடமையா இருக்கிறது. हर एक परमेश्वर के लोगों के ऊपर घिरा हुआ फर्ज வேதத்துல है. சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, शास्त्र में कहा गया है சுவிசேஷம் சொல்லாதிருந்தால் सुसमाचार अगर नहीं बताया உனக்கு तो ஐயோ என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. तेरे लिए हाय है करके ஆம் कहा தேவனுடைய गया है. பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर के நம்மால் लोगों, முடிந்த அளவு हमसे जितना हो, நம்மளால எவ்வளவு நமக்கு பலம் இருக்கிறதோ, हमारे अंदर जितना बल है, எவ்வளவு நமக்கு முடியுமோ जितना हमसे हो पाएगा அவ்வளவுக்கு அதிகமாக उससे भी अधिक இந்த திறந்த வாசலுக்காக நம்ம ஜெபித்து खुले द्वार के लिए हमें प्रार्थना करनी சுவிசேஷத்தை है மற்றவர்கள் நம்ம அறிவிக்க और வேண்டும். उनको इस सुसमाचार को बताना है. பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் அதைத்தான் விரும்புகிறார். परमेश्वर वही चाहता है. திறந்த வாசலுக்காக खुले द्वार के நம்ம लिए ஜெபிக்க हमें வேண்டும். प्रार्थना करना
करना है। அப்படி ஜெபிக்கும் பொழுது ऐसा प्रार्थना करते இந்த समय தேசத்திற்கு इस देश के लिए ஆண்டவர் சேமத்தை அவர் கொடுப்பார். परमेश्वर भलाई को देगा। இந்தியா தேசம் भारत देश இன்றைக்கு आज भी இந்த மாசத்துல इस महीने में 74வது சுதந்திர தினத்தை கண்டாலும் கூட 74th इंडिपेंडेंस डे को देखा तो இன்னும் भी அநேக ரட்சிக்கப்படவில்லை. और भी अनेक लोग उद्धार नहीं ஒரு पाए। உண்மையான एक सच्चाई ஒரு का விடுதலை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. छुटकारा वो लोग नहीं पाए இன்னும் ஒரு உண்மையான ஆண்டவரை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை. और भी सच्चाई की परमेश्वर को नहीं जाने। இப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்குள்ளாக इस प्रकार के लोगों இந்த के बीच में சுவிசேஷம் போகும்படியாக सुसमाचार जाने के இந்த लिए சுவிசேஷம் பரவும்படியாக सुसमाचार फैलने के लिए திறந்த வாசலுக்காக खुले द्वार के நாம் लिए ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். हमें प्रार्थना करना है करके परमेश्वर चाहता है। பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே परमेश्वर के लोगों இந்த நல்ல நாளுக்காக इस अच्छे दिन के நான் लिए தேவனுக்கு நான் நன்றி हम செலுத்துகிறேன். परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। இந்த வசனங்களுக்கு தெரியும். ये वचन आप सब जानते हैं। இந்த வசனம் எல்லாரும் படித்து इस இருக்கிறார்கள். वचन को सब पढ़े रहेंगे। நாம் அநேகரை கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம். अधिक बार सुने हैं। ஆனா இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டு इस இருக்கிறது. वचन में कहा गया है நான் பொல்லாதவர்களிடம் திரும்பும் பொழுது हम बुरे मार्गों से फिरते समय சொல்லுவேன் பாவத்தை மன்னித்து अपने पाप को क्षमा करके நான் தேசத்திற்கு நான் சேமத்தை நான் கொடுப்பேன். मैं देश में भलाई को दूंगा। ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। நாம் பொல்லாதவர்களிடம் திரும்ப வேண்டும். बुरे मार्गों से फिरना है। நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். अपने आप को दीन करना எல்லா है। மனுஷருக்காக ஜெபிக்க सारे வேண்டும். मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना है। அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்காக ஜெபிக்க अधिकार வேண்டும். में रहने वालों के लिए प्रार्थना அது करना மாத்திரமல்ல है। इतना ही नहीं இது கடைசி காலம் இருக்கிறபடினால अंतिम दिन है इसलिए ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु அவர் मसीह சீக்கிரம் வர போகிறார். शीघ्र आने वाला அவர் है। சீக்கிரம் வருகிறதுனால शीघ्र आने के निमित्त தேசம் முழுவதுமாக सारे देश में ரட்சிக்கப்படுவதற்கு उद्धार पाने के இந்த लिए திறந்த வாசல் ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டும். खुले द्वार को परमेश्वर देना நாம் है। அதற்காக ஜெபிக்க हम வேண்டும். उसके लिए प्रार्थना करना எல்லா है। காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது सारे कार्यों के लिए प्रार्थना करते ஆண்டவர் समय வைராக்கியமாக சொல்லுகிறார், परमेश्वर वैराग्य से நான் कहेगा தேசத்திற்கு हम देश के நான் लिए சேமத்தை நான் கொடுப்பேன். भलाई को दूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் உங்கள் மூலமாக परमेश्वर आपके द्वारा நம்முடைய பிள்ளைகள் மூலமாக अपने बच्चों के द्वारा இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதிக்க इस விரும்புகிறார். देश में आशीष करना चाहता தேசத்திற்கு है। சேமத்தை கொடுக்க देश में விரும்புகிறார். भलाई देना चाहता है। தேசத்து நன்மைகள் வரும்படியா देश விரும்புகிறார். में अच्छाई देना चाहता है। அதற்கு उसके लिए நம்மை நாமே தாழ்த்துவோம். अपने आप को अर्पण करेंगे। அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்காக நம்ம ஜெபிப்போம். अधिकार में रहने वालों के लिए प्रार्थना எல்லா करेंगे। மனுஷருக்காக நம்ம ஜெபிப்போம். सारे मनुष्यों के लिए हम प्रार्थना பொல்லாத करेंगे। வழிவிட நம்ம திரும்புவோம். बुरे मार्गों से हम फिरेंगे। அது மாத்திரமல்ல इतना ही நாம் नहीं கடைசியா பார்த்தோம் अंत में हमने देखा சுவிசேஷம் பரவும்படியாக समाचार फैलने நாம் के लिए திறந்த வாசலுக்காக நம்ம ஜெபிக்க खुले வேண்டும். द्वार के लिए हमें प्रार्थना ஏனென்று करना है। சொன்னால் क्यों करके பிசாசானவன் देखेंगे शैतान இது जो ஒரு है கடைசி நாளா இருக்கிறபடினால ये अंतिम दिन है इसलिए அவன் அதிகமாக இன்னைக்கு போராடி கொண்டு वो இருக்கிறான். अधिक संघर्ष करता है। அவனுக்கு கொஞ்ச நாள் ये இருக்கிறபடினால थोड़े दिन है इसलिए அவன் அதிகமாக இன்னைக்கு ஊழியர்களுக்கு விரோதமா போராடி கொண்டு वो இருக்கிறான். अधिक सेवक लोग के लिए वो संघर्ष करता தேசம் है। ஆசீர்வதிக்க முடியாதபடிக்கு देश आशीषित ना होते हुए தேசத்துல பல பாவங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறான். देश में अनेक प्रकार के पाप ले आता है। அதனால इसलिए நாம் அதை அறிந்து हम वो सब जानकर நாம் செயல்பட்டு हम कार्य कर நாம் தேசத்திற்காக हम देश के लिए நாம் மன்றாட வேண்டும். हमें संघर्ष करना है। தேசத்திற்காக देश के लिए நாம் கண்ணீர் விட வேண்டும். हमें आंसू बहाना है। ஆண்டவர் சொன்னாரு, परमेश्वर ने कहा நான் தேசத்தை मैं அழிக்காதபடிக்கு देश को नाश न करते हुए திறப்பில் நிற்கவும் तुम खुले द्वार में खड़े रहने के சுவரை लिए அடைக்கத்தக்கதாக द्वार को बंद करने के ஒரு लिए மனுஷனை தேடினேன், एक मनुष्य को ढूंढा ஒருவனை நான் காண என்று சொல்லுகிறார். एक को भी मैं न पाया तो ஆம் मैं தேவனுடைய कहता பிள்ளைகளே, है। हाँ परमेश्वर के लोगों ஆண்டவர் ஒரு இருதயத்தில் அவருக்கு ஒரு வியாகுலம் இருக்கிறது. परमेश्वर के हृदय में एक व्याकुल இந்த है। தேசத்தை அழிக்க விரும்பல. इस देश को नाश करना नहीं அப்ப चाहता, யாரா திறப்பில் நிற்க வேண்டுமே. लेकिन खुले द्वार में किसी को आना சுவரை है। அடைக்கத்தக்கதாக द्वार को बंद करने के ஒரு लिए மனுஷனை தேடினேன், एक मनुष्य को ढूंढा, ஒருவனை காண என்று சொல்லி किसी இருக்கிறார். को भी न पाया அந்த कहा। மனுஷன் वो मनुष्य அந்த மனுஷி वो मनुष्य நீங்க இருக்கலாம், आप हो सकते हैं, நாம இருக்கணும். हम होना है। அவர் அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். वही परमेश्वर चाहता அவர் है। உங்களை தேடிக் கொண்டு वो இருக்கிறார். आपको ढूंढ रहा है। ஓ நீங்கள் ரட்சித்த அவர் அபிஷேகித்தவர் आपको उद्धार करके अभिषेक किया உங்களை परमेश्वर। வெறுமே அபிஷேகிக்கவில்லை. आपको व्यर्थ अभिषेक नहीं நீங்க किया। இருக்கிற இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று आप அபிஷேகிக்கவில்லை. रहने वाले स्थान में ही रहना है, நீங்க எப்படி अभिषेक இருக்க नहीं किया। வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படி இருக்க விரும்பவில்லை. आप आज जिस स्थिति में है वैसे ही रहने के लिए அவர் अभिषेक नहीं किया। சொல்லுகிறார், वो कहता है தேசத்தை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன். देश को आशीष करना चाहता நீ हूँ, எழும்பு, तो उठ, சுவிசேஷம் சொல்லு, सुसमाचार बोल, எழும்பு சியோனே, उठ உன் सियोन, வல்லமை தரித்துக்கொள், तेरी सामर्थ को धर ले, தூசியை விட்டு நீ எழும்பு. इस धूल से उठ, இந்தவர் எழுப்புகிறார். ऐसा उठाता அது है। எழுப்பி நம்ம பிரகாசிக்கும் उस பொழுது तरफ प्रकाशित होने के இந்த लिए உலகத்துக்கு இயேசு சொன்னாரு, इस संसार में यीशु ने நீங்க कहा வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள், आप लोग प्रकाश है, நீங்க உப்பா आप இருக்கிறீர்கள் लोग इसके लिए नमक है, என்று சொல்லி இருக்கிறார். ऐसा कहता है। தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் आज से परमेश्वर के लोग நாம் हैं, எழும்பும் பொழுதுதான் हम उठते இந்த समय தேசத்திற்கு इस देश के लिए ஆண்டவர் परमेश्वर பெரிய சேமத்தை அவர் கொடுப்பார். बड़ी भलाई को देगा। பிரைஸ் அல்லாஹ், हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் परमेश्वर के लोग हम நம்மை
தாழ்த்துவோம். अपने आप को दीन करेंगे। சரியா? ठीक है। நம்ம தேசத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக, हमारे देश की आशीष के लिए, நம்முடைய தேசத்தின் நன்மைகளுக்காக हमारे देश की भलाई के लिए நாம் இன்றைக்கு நம்ம ஜெபிக்க போறோம். हम आज प्रार्थना करने वाले हैं। நிச்சயமாகவே निश्चय ही இந்த வார்த்தையின் மூலமாக इस वचन के द्वारा கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்தி இருக்கிறார். परमेश्वर आपको बल किया है। இந்த வசனம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ये தெரியும். वचन आप सबको पता நம்ம है। அநேக முறை हम படித்திருக்கிறோம். अधिक बार पढ़े हैं, நம்ம ஆனால் लेकिन மனம் திரும்பணும். मन फिराना है। பொல்லாதோட மனம் திரும்ப बुरे எதிர்பார்க்கிறார். कार्यों से मन फिराना இதெல்லாம் நம்ம परमेश्वर செய்யும் பொழுது ये सब हम करते समय நம்ம இந்தியா தேசமானது हमारा भारत देश தேசத்தை ஆண்டவர் தரும் என்று வாக்கு इस கொடுத்திருக்கிறார். देश को दूंगा करके परमेश्वर प्रतिज्ञा देता சரியா? है। ठीक है। நாம் ஜெபிக்கலாமா? हम प्रार्थना நாம் करेंगे, தேவ சமூகத்திலே ஜெபிப்போம். परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना நம்ம करेंगे। இந்த நாட்களில इन दिनों में 74வது சுதந்திர தினத்தை நம்ம கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம். 74th जो इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, நாம் நிச்சயம் நம்ம ஜெபிப்போம். हम निश्चय प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே, परमेश्वर உண்மைதான்ப்பா, सच है पिता, பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்திலிருந்து ब्रिटिश के राज के दिनों में से எங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்து நமக்கு நன்றி. हमें छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। ஆனாலும் लेकिन ஒரு உண்மையான விடுதலை எங்க தேசத்துக்கு வேணும். एक सच्चाई का छुटकारा हमारे देश में चाहिए। உண்மையான ஒரு சமாதானம் எங்க தேசத்துக்கு एक வேணும். सच्चाई की समाधान हमारे देश में அப்ப चाहिए। உம்முடைய தேசத்துக்கு வேணும். आपकी समाधान हमारे देश में चाहिए। எங்களுடைய ஜனங்கள் और भी हमारे लोग ரட்சிக்கப்படாம இருக்கிறாங்களே, उद्धार नहीं पाए हैं, பல கட்டுகளிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்களே, अनेक प्रकार के बंधन में जीते பல हैं, சாபத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்களே, अनेक प्रकार के श्राप में जीते हैं। ஆண்டவரே, परमेश्वर எல்லா ஜனங்களுக்காக सारे लोगों के நாங்கள் लिए ஜெபிக்கிறோம் என்று சொல்லி हम प्रार्थना करते हैं நீங்க करके, இருக்கிற இடத்துல हम रहने वाले स्थान में உண்மையாக सच्चाई के साथ உங்கள் அன்போடு தான் கேட்டுக்கிறேன், प्रेम से विनती करते हैं, தயவோடு தான் கேட்டுக்கிறேன். दया से विनती करते நம்முடைய हैं, தேசத்தின் மேல் அன்பு வைத்து, हमारे देश के ऊपर प्रेम रखकर, நம்முடைய தேசத்தின் மேல ஒரு சுத கரிசனை வைத்து हमारे देश के ऊपर एक प्यार நீங்க रखकर ஜெபிக்கும்படியா आप கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். प्रार्थना करने के लिए विनती இன்னைக்கு करते हैं। தேசம் பலவிதமான உபத்திரவங்களை கடந்து போய் கொண்டு आज இருக்கிறது. हमारा देश अनेक प्रकार के उपद्रव के ஓ, बीच இந்த में से கொள்ளை जाता है, நோயில கடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறது. इस महामारी के बीच में से जा रहा है। இதெல்லாம் மாற வேண்டுமே, ये सब बदलना है, இதெல்லாம் மாற ये வேண்டுமே. सब बदलना है। நாம் ஜெபிக்கலாமா? हम प्रार्थना करेंगे, இருக்கிற இடத்திலேயே रहने वाले स्थान में உங்களை ही தாழ்த்துங்க. अपने आप को अर्पण நீங்க எவ்வளவு कीजिए। பெரியவளா இருக்கலாம், आप कितने बड़े हो सकते நீங்க எவ்வளவு हैं, வசதி படைத்தவளா இருக்கலாம், आप अच्छे धन दौलत के साथ जी எல்லாம் सकते हैं, உங்களுக்கு இருக்கலாம். सब कुछ आपके जीवन में हो ஆண்டவர் सकता है, விரும்புகிறார் लेकिन परमेश्वर தேசம் चाहता है, ஆசீர்வதிக்கப்பட देश आशीषित உன்னை होने நீ के लिए தாழ்த்த तो வேண்டும். अपने आप को अर्पण करना நம்மை है, தாழ்த்தி ஜெபிக்கலாமா? अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना மனம் करेंगे, திரும்பலாமா? मन फिराएंगे, எல்லா மனுஷருக்காக ஜெபிக்கலாமா? सारे मनुष्य के लिए हम प्रार्थना திறந்த करेंगे, வாசலுக்காக ஜெபிக்கலாமா? खुले द्वार के लिए हम प्रार्थना நாம் करेंगे, ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे। எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हमसे अधिक प्रेम करने वाले अच्छे पिता आपको धन्यवाद। தர்மியான வேலைக்காக நாம நன்றியோடுமே துதிக்கிறப்பா. इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद करते இந்த हैं, ஓய்வு நாளிலும் கூட इस अच्छे इतवार के அப்ப दिन எங்க தேசத்தை குறித்த பாரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தீர், உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. हमारे देश के बारे में बोझ आपने दिया, इसलिए எங்க धन्यवाद। தேசத்தை உம்முடைய சமூகத்துல வைத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हमारे देश को आपके सम्मुख में रखकर हम எங்க प्रार्थना எங்க करते हैं। தேசத்துல हमारे देश में நீர் எங்களை பிறக்க வைத்ததற்காக உமக்கு கோடி நன்றி அப்பா. आपने हमें जन्म दिया, इसलिए धन्यवाद। எங்க தேசத்தை குறித்து நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம் हमारे ஐயா. देश के बारे में हम बड़प्पन होते हैं, நாங்க இந்தியன் என்று சொல்வதற்கு நாங்கள் அதிக சந்தோஷம் அடைகிறோம் हम ஐயா. भारतीय हैं करके हम अधिक आनंदित होते हैं। ஏன் என்று சொன்னால் क्यों करके देखेंगे, இந்தியா தேசத்தை நேசித்து இருக்கிறேன். हमारे भारत देश से आपने प्रेम எங்க किया இந்தியா है। தேசத்துல हमारे भारत देश பல से மொழி பேசுறவர் இருக்கிறாங்கப்பா, अनेक भाषाओं के लोग பல हैं, தரப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்கப்பா. अनेक प्रकार के लोग हैं, அதற்காக உமக்கு நன்றி. इसके लिए आपको धन्यवाद। எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். सबके लिए हम प्रार्थना ஒரு करते हैं, உண்மையான விடுதலை எங்க தேசத்துல கொடுங்க. एक सच्चाई का छुटकारा हमारे देश में दीजिए। 138 கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. 138 करोड़ लोग हमारे देश में இவங்க हैं, ஒருவர் கூட इनमें से कोई भी நரகத்துக்கு போய்விடக் கூடாது ஐயா. नरक में नहीं जाना है இந்த पिता। தேசத்துல அக்கினியை போடுங்க. हमारे देश में अग्नि எங்க दीजिए, தேசத்துல ரட்சிப்பை கட்டளையிடுங்க. हमारे देश में उद्धार दीजिए, எங்க தலைமுறையில हमारे जनरेशन में நாங்கள் அதை காணணும் ஐயா. हम लोग उसे देखना है, எங்க நாங்க கண்கள் காணணும் हमारी ஆண்டவரே. आंखें उसे देखना है, எங்க தேசம் हमारे ஆசீர்வதிக்கப்படுவது, देश आशीषित होता உங்க हुआ, தேசத்துல சேமத்தை பார்க்கணும் हमारे ஆண்டவரே. देश में हमें भलाई को देखना है। இறங்கணும் ஐயா. आप उतरिए தெரு தெருவாக, हर एक जगह ஓ में, ரோடு ரோடாக हर एक रोड में பாடல் சத்தம் கேட்கணுமே. गीत की आवाज गूंजना है, இயேசுவே ரட்சகரை சொல்லணுமே. यीशु ही उद्धारक करके सुनना கர்த்தரே है, மெய்யான தேவனின் அறிக்கையிடுமே. परमेश्वर की सच्चाई का परमेश्वर करके सुनना है, எல்லா முழங்காலும் முடங்காடணுமே. सारे घुटने टेकना है, அதற்காக ஜெபிக்கிற ஐயா. उसके लिए हम प्रार्थना करते எல்லா हैं, முழங்கால் முடங்கட்டும் ஐயா. सारे घुटने टेकना எல்லா है, நாவு அறிக்கை பண்ணட்டும். सारी जीभ आपको நீரே अंगीकार करना தேவன் है, என்று சொல்லி आपकी परमेश्वर, நாமும் தேசத்துல உயர்த்தப்படட்டும். आपके नाम इस देश में எங்க उच्चार தேசம் हो, ரட்சிக்கப்படட்டும். इस देश में महिमा हो, எங்க தேசத்தை ஆளுகை செய்கிற தலைவர்களுக்காக हमारे देश ஜெபிக்கிறோம். में राज्य करने वाले लीडर्स के लिए எங்க प्रार्थना करते பிரைம் हैं, மினிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறேன். हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, பிரசிடென்ட்டுக்காக हमारे ஜெபிக்கிறேன். प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, அமைச்சர்களுக்காக हमारे ஜெபிக்கிறோம். जो हर एक लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, எம்எல்ஏக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். एमएलए के लिए प्रार्थना करते हैं,
எம்பிக்களுக்காக एमपी ஜெபிக்கிறோம், के लिए प्रार्थना करते हैं, கவுன்சிலர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். काउंसिलर के लिए प्रार्थना करते हैं। எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. सबको आप आशीष कीजिए। எங்க தேச தலைவர் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும், हमारे देश के हर एक लीडर आशीषित रहना है, சுகபலத்தோடு கூட இருக்கணும். सुख और बल के साथ रहना எங்க है। தேசத்தை ஆளுகை செய்கிற உங்களுடைய ஞானத்தால் நிரப்பணும் हमारे ஆண்டவரே. देश को राज्य करने के लिए ज्ञान से आप भर எல்லா दीजिए, ஜனங்களை நேசிக்க सारे लोगों से प्रेम करें। அப்படிப்பட்டதான இருதயத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக इस ஜெபிக்கிறேன். प्रकार का हृदय उन्हें देने के लिए हम அவர்கள் प्रार्थना करते நல்ல हैं। நீடோடி வாழணும், वो लोग अच्छी तरह से जीना है, சுகமா இருக்கணும். सुखित रहना அவங்க है, பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க ஐயா. उनको सुरक्षा दीजिए। தேவ தூதர்கள் பாதுகாப்பு நிற்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். दूत लोग उनकी सुरक्षा के लिए रहने के लिए प्रार्थना தேசம் करते முழுவதுமாக हैं। देश में पूरा நாங்கள் பெரிய பாதுகாப்பு இருக்கட்டும். बड़ी सुरक्षा रहे, தீவிரவாதிகள் மூலமாகவோ आतंकवादियों के द्वारा, மற்ற எந்த விரோதிகள் மூலமாகவோ दूसरे किसी विरोधियों के இந்த द्वारा தேசத்தில் எந்த விதமான பாதிப்பு हमारे இருக்கக்கூடாது. देश में कोई प्रकार की समस्या न हो। நாலாபுரம் எல்லைகளிலும் चारों तरफ से बॉर्डर में இயேசுப்பா ரத்தத்தை நாங்கள் தெளிக்கிறோம். यीशु आपकी लहू का हम छिड़कते எங்கள் हैं। ராணுவ வீரர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, हमारी जो लीडर से उनको संभाल दीजिए, ராணுவ அதிகாரிகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. हमारे जो आर्मी है उनके अधिकारी को இயேசுப்பா संभालिए, தேசத்தை பாதுகாப்பிற்காக, हमारे देश की सुरक्षा के எங்களுடைய लिए, பாதுகாப்பிற்காக हमारी सुरक्षा के அந்த लिए அப்பா சோத்திர பாடல் நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்களே, बॉर्डर में खड़े रहते हैं परमेश्वर। ஒவ்வொரு ராணுவ வீரரை நினைக்கிறோம் ஐயா. हर एक आर्मी पर्सन को हम याद இயேசுப்பா करते हैं, அவங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக उन्हें ஜெபிக்கிறேன். सुरक्षा करने के लिए हम प्रार्थना ஒருவர் करते கூட இறந்து விடக்கூடாது, हैं। एक भी व्यक्ति नहीं गुजरना है, ஒருவர் கூட ஆபத்து வந்து விடக்கூடாது. किसी के भी जीवन में संकट नहीं आना தேசமுள்ள है। பாதுகாப்பை கட்டளையிடும்படியாக देश ஜெபிக்கிறேன். में पूरा अब सुरक्षा देने के ஒரு लिए हम பெரிய प्रार्थना करते ஒரு ரட்சிப்பின் அறுவடை हैं। एक बड़ी उद्धार की कार्य இந்த தேசத்துல செய்யுங்க ஆண்டவரே. हमारे देश में कीजिए, நாங்க அதை காணும்படியான கிருபையில கொடுக்கும்படியாக हमें ஜெபிக்கிறேன். उसे देखने के लिए अनुग्रह दीजिए। சாத்தானின் கோட்டைகள் உடைப்பதாக, शैतान के सारे राज्य टूट जाए, அந்நிய வல்லமைகள் நிர்மலமாக்கப்படுவதாக, अन्य सामर्थ्य सब निर्छा किया உங்களுடைய जाए, வல்லமை தேசத்துல இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். आपकी सामर्थ्य देश में उतरने के लिए பெரிய प्रार्थना காரியங்களை करते हैं। செய்யுங்க ஆண்டவரே. बड़े कार्य உங்களை कीजिए, தாழ்த்துகிறோம். अर्पण करते இந்த हैं। அருமையான வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறேன் अच्छे वचनों को सुनने இந்த वाले பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். आपके बच्चों के लिए प्रार्थना ஒவ்வொரு करते हैं। ஆசீர்வதிங்கப்பா. हर एक को आशीष இந்த कीजिए, தேசத்தை குறித்ததான इस देश के बारे ஒரு में பாரத்தை கொடுங்க. अच्छा बोझ दीजिए, தேசத்தை குறித்ததான ஒரு நல்ல எண்ணத்தை கொடுங்க ஐயா. देश के बारे में अच्छी सोच दीजिए, என் பிள்ளைகளை தூங்க விடாதங்க. बच्चों को सोने न ஒரு दीजिए, பாரத்தை ஊற்றும் ஐயா. एक बोझ को दीजिए, ஒரு வல்லமை பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க. एक सामर्थ को दीजिए, ஜெபாவியால நிரப்புங்க. प्रार्थना की आत्मा से भर அந்த दीजिए, உமக்காவால கிருபையில கொடுங்க. तो आपके लिए जीने के लिए अनुग्रह அவங்க दीजिए, தேவையில்லாத சந்தித்து கொடுங்க. उनकी जरूरतों को पूरा இந்த कीजिए। இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில इस इक्कट के समय அவங்க में எல்லா தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும். सारी उनकी जरूरतें पूरी ஒரு हो, குறைவில் இருக்க கூடாது. एक भी कमी ना आए। இந்த வாரத்திலும் கூட ஐயா इस महीने में भी அப்பா இவருடைய தானாப்பா பட்டணத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். हमारे थाना शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, எங்களுடைய சபைக்காக हमारे ஜெபிக்கிறோம். कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। எங்களை கூட हमें கடந்த भी 33 ஆண்டுகள் பாதுகாத்து पिछले 30 साल आपने இந்த संभाल कर ஊழியத்தை ஆண்டவரே நடத்தி इस सेवकाई को आप चलाकर 34 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக 34th इस वर्ष में நடத்தி கொண்டு வந்தீரே. चलाकर आप आए உமக்கு हैं, நன்றி அப்பா. आपको இந்த धन्यवाद। புதிய வருடத்துல इस नए वर्ष இந்த में சபையிலான ஆத்துமாக்களை தாங்க. हमारे कलीसिया में अनेक आत्मा பெரிய दीजिए, எழுப்புதல் சபையில கட்டளையிடுங்க. हमारे कलीसिया में बड़ी रिहाई दीजिए, எல்லா ஜனங்கள் சபை கடந்து இருக்கிற தரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். अनेक लोगों को कलीसिया में लेकर आइए। தேவனா மகிமைப்படட்டும். परमेश्वर के नाम की महिमा, எல்லாரையும் தாழ்த்துகிறோம். सबको अर्पण करते हैं, ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए। இயேசுவின் ஜெபம் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से मानते पिता, ஆமென். आमेन। நாத்துமாவே கர்த்தரை சோதரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை சோதரி. நாத்துமாவே கர்த்தரை சோதரி, கர்த்தர் சகல உபகாரங்களே மறவாதே. आमेन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, ये मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसने किए हुए सारे उपकार को कभी ना भूलना। आमेन। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் हमारे यीशु का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्यार, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का सहभागिता நம்மோடு கூட हमारे साथ, உலகத்துல பரிசுத்தவான்களோடு கூட संसार के हर एक पवित्र लोग के எல்லா साथ, ஜனங்களோடு கூட सारे लोगों के साथ, சபையோடு கூட कलीसिया के साथ என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. हमेशा रहे। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। God bless you. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. आमेन। எல்லாருக்கும் சோதரம். பிரைஸ்